Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now the question is, what's the main difference between cinema camera and the DSLR? It could be the cinema camera or the video camera. It may be the question like the DSLR and the video camera. So there's a few differences between cinema camera and the DSLR. The few things that we'll discuss right now. So I just pointed out 5 things. There should be the many things. So, but the mainly 5 things. So we'll discuss on it. So, but right now अभी क्या है कि DSLR and cinema camera, if you compare कि अभी के टाइम पे करोगे तो both camera are providing the 4K SD, full SD and a kind of the output that the camera have. So बहुत near by पहुंच चुका in terms of DSLR, in terms of cinema cameras, but the till now there's a few things that is they make it separated, and in terms of quality, why the cinema camera is better in terms of price, also in terms of quality also. So we started from the compression, right? So everyone from you guys have just used your DSLR camera for video purpose, and in that DSLR camera there's a many option in videos, like you got the MP4 MOV. If you guys are using Sony camera, Sony have the different kind of compression, like FQ, FH, HQ. There's a 4 or 5 kind of the compression is the different kind of settings is over there. In Canon also there's only MOV and MP4, but in MOV also there's a certain kind of compression. So the same compression as a DSLR, in every DSLR there are different kind of compressions. So in every DSLR camera there is a certain range of compression. It means whatever the data is coming through the lens to your sensor, there's a manipulation and there's a high end compression, right? जो भी आपको इमेज दिख रहा है, so जो भी आप कोडेक यूज कर रहे हो, either you are using the MOV or MP4, you have seen that if you're shooting in MOV and if you have shoot on MP4, the same subject with the same lightings and the same settings, दोनों के in terms of size देखोगे कि दोनों के size में काफी difference होता है. If this one for the 2 GB का file बन रहा है, in MP4 is the only 1.2 GB or sometimes the 1 GB. Why it's happened? It's just because of the compression, right? So the same things with the cinema camera. There's also codec, there's also compression, but there's also option that there's a no compression at all. वहाँ कोई compression नहीं होता in terms of quality. Whatever the information your sensor is gathered, the same information is the recorded on your memory card. But in DSLR, what happened? Whatever information coming through the lens to your sensor, after the compressions or settings like the codecs, like you are using the MOV or MP4, it got compressed. आपको पूरा information नहीं मिलता है. And one more thing, due to the size of your sensor, okay, you can say that our sensor is bigger. Like our sensor is 36 by 24. Cinema camera don't have the 36-24. छोटा sensor होता है, तो हमारी quality अच्छी होनी चाहिए, right? Because we have the more information. But totally it's depend upon how the pixel depth is, how bigger your pixel is. It's depend on that also. So also the aspect ratio that DSLR camera have and the aspect ratio that the cinema camera has is totally different. So once you start recording on your video on your DSLR, you've seen that it become cropped. कि थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा एरिया क्रॉप्ड हो जाएगा ड्यू टू एस्पेक्ट रेशियो, बिकॉज वो फुल एचडी पे एस्पेक्ट रेशियो आपका नहीं जा रहा है, तो सेंसर हैव द 4:3 एस्पेक्ट रेशियो. दैट्स द रीजन. और भी इंफॉर्मेशन आपका क्रॉप हो जाता है और भी इंफॉर्मेशन आपके कट जाते हैं. So in every DSLR there is a certain kind of compression. So here I'm showing you one example. If you guys have ever used the Canon cameras, this kind of when you are going to the movie mode, at that point of time you've seen this kind of options is over there, like every one is a full HD, right? FSD full HD 59 frames, FSD 23 frames, SD 29 frames, FSD 29.97 again. But after that, have you seen that there's a IPV and I? लिखा हुआ है ना, all I and IPV. It's not that the scanning lines, ये आपके scanning lines नहीं है. It's not the progressive, it's not the interlace. ये वो वाला P and I नहीं है. ये आपका total video आपका जो है progressive ही है, but these are the compression. If you guys ever use and recorded on all I and recorded on IPV, you feel the difference in terms of size, not in terms of quality.
क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप IPV पे क्लिक कर रहे हो, सॉरी शूट कर रहे हो एंड ऑल आई पे क्लिक करो. दिस आर द जस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्रेशंस कि दोनों में कंप्रेशन है. But this called the all eye called the intra frame compression. There is a compression, but there's a different kind of compression. All IPV is inter frame compression. So basically Canon introduced these things, or now the many camera have those functions. So firstly Canon introduced these things in DSLR. Okay, so all eye is the intra frame compressions. इसमें होता क्या है कि you guys if you ever use the editing systems or edit पे कभी भी अपने footage को लेके जाते हो, you have seen that there's a 24 frame, right? If you shoot it at 24 or 25, whatever the frame rate you are shooting, that much of frame will be there on your timeline. So on that timeline, there is a certain number of keyframe, right? जो keyframe जहाँ से movement, जहाँ से आप image ले सकते हो, right? So when you're shooting on all eye, your every frame is your keyframe. It means आप each and individual frame को अपने हिसाब से grade कर सकते हो, अपने हिसाब से edit कर सकते हो. So each and every frame have their own compression. कि हर एक फ्रेम को आप हर एक फ्रेम को आप की फ्रेम बना सकते हो. इट मींस once you are shooting on all eye, it means your all frame is your key frame, right? इसमें कोई ग्रुप ऑफ पिक्चर्स इंक्लूडेड नहीं है. सो हर एक फ्रेम को अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो. बट वंस यू आर शूटिंग ऑन ऑल IPV, at that point of time what happened, the group of pictures become, right, the keyframe. Like आपने एक को manipulate करोगे, the rest of the 3 or 4 is depend upon the manufacturer how they decided it कि उस पे क्या होगा, ये अपने आप को compress करेगा. Like 4 or 5 pictures will be getting compressed, or a group of 6 pictures, sometimes group of 4 pictures. So if there's a group of 4 pictures, it means there is a 6 keyframe. If a group of 8 pictures, there will be 3 keyframes. So it depends upon, you know, the camera manufacturer how they decided to make those things. So but the difference is in IPV or all eye. In all eye, there's a all frame is your keyframe, right? So that's the main reason once you are recording on all eye, so your file become larger. आपका फाइल साइज जो है बड़ा हो जाता है. एंड IPV there's a smaller file size on 1.5 time का कह सकते हो. If recorded on all eye, it becomes the 1.5 GB, or if you recorded on all IPV, it will be the 1 GB. So अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम एडिट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री यू आर शूटिंग, काइंड ऑफ प्ले यू आर शूटिंग, और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ समथिंग, और कोई इवेंट कवर कर रहे हो वेयर यू डिडंट नीड टू, you know, the edit frame by frame and do grading for it, don't need to capture all eye because ये ज्यादा space आपका cover करेगा. In terms of quality, once you see the monitor, ये बहुत difference नहीं लगता है दोनों में, दोनों आपको लगभग same ही लगता है. But all eye में भी there is a certain compression. ऐसा नहीं all eye में compression I'm not talking about, it's a raw. ये raw नहीं होता, there is a certain compression. So in cinema camera वहां भी कंप्रेशन है, वहां भी कोडेक है, जो भी आप यूज करते हैं वहां भी कोई ना कोई कोडेक लगता है. बट देयर इज आल्सो वन ऑप्शन कॉल्ड द रॉ, राइट? ऑन रॉ you can shoot. It means whatever the data is coming through your lens to the sensor, that will be recorded like your JPEG जो आप फोटोग्राफी में करते हो अपने DSLR cameras में, there's a raw file, but in video there's a no raw at all. कुछ अभी log आ गए हैं, some system have the log, but that's not the totally raw. वो पूरा का पूरा raw नहीं होता. There is a certain processing because once you shoot it in raw or once you record it in raw, you are not able to see those videos. It means to see those videos, you need a certain windows. In that windows, there must be certain compression. कि वहाँ कुछ ना कुछ compression होगा. It may be there's a high-end compression. Suppose, for example, if you are shooting on JPEG, sorry, raw in photography, तो रॉ को कहीं ना कहीं आप ओपन करते हो, कहीं ना कहीं देखते हो. इन सम सिस्टम्स कोई ना कोई विंडोज होता है जिसपे खुलता है. सो वी आर ओपनिंग इट ऑन द TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जिसपे हम इसे ओपन करते हैं. जस्ट लाइक दैट, जैसे आप वीडियो रॉ में भी शूट करते हो, लॉग में भी करते हो, यू नीड अ सर्टेन वीडियोस इन व्हिच यू विल वॉच इट. सो बेसिकली इन सिनेमा कैमरा का कंप्रेशन और DSLR का कंप्रेशन का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है. द रीजन इज आपका जो प्रोसेसर है ना, आपका जो इमेज प्रोसेस होता है, एक्चुअली दैट इज आपका जो डिवाइस है, दैट इज इमेज प्रोसेसिंग डिवाइस. बेसिकली योर DSLR कैमरा meant for the, you know, the images meant for the photography. So there's a image processing device, and that device, that processor have the certain limitations.
So but in like cinema cameras is the video processing device, so video processing के लिए बना हुआ है. So their processor have the different kind of a speed. So for the processor के region से भी हमारा compression काफी high किया जाता है, हमारा बहुत ज्यादा image compress किया जाता है. So in cinema camera there is a less compression. This one there is a in cinema camera there is a less compression, but in DSLR यहाँ बहुत ज्यादा compress होता है. If you guys ever use the Sony cameras, वहां के 4-5 ऑप्शन, there's a different compression is there. जो भी आपको HQ या FH जो भी दिया हुआ है, आप देखोगे वहां पर certain bitrate लिखा हुआ रहता है. जैसा bitrate when once you are shooting on raw और JPEG image जब आप क्लिक करते हो उसमें फाइल साइज के ऑप्शन आते हैं, राइट, कि आप लार्ज कर रहे हो, मीडियम कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, राइट. इट्स नॉट अबाउट द एस्पेक्ट रेशियो. एस्पेक्ट रेशियो नहीं होता. आप देखोगे once you are choosing the large there is a certain dimension. That dimension is about the pixels. When you are shooting on medium there is a certain dimension. दोनों को multiply करो, you got that the exact what many megapixels is activated now. कितने मेगापिक्सल का आपका इमेज बन रहा है. वो जो डायमेंशन दिया हुआ रहता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, लाइक 2950 by 5630 जो भी है, दैट इज पिक्सल्स डायमेंशन. आपका कितना मेगापिक्सल उस इमेज पे बन रहा है. एस्पेक्ट रेशियो इज रिमेन सेम. आपका इमेज छोटा बड़ा नहीं होता है. सो सॉरी सो इन एवरी कैमरा अगर जो आपका कलर, आपका जो सॉरी कलर फिल्टर एरे है या जिससे भी लाइट आ रही है, वहां पर कलर का सब सैम्पलिंग होता है, राइट. ये कंप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉक अबाउट इट. इट्स द क्रोमा सब सैम्पलिंग. आई थिंक एवरीवन हर्ड अबाउट इट. सो लेटर ऑन आई विल डिस्कस ऑन दोस पीपीटीज कि ये क्रोमा सब सैम्पलिंग कैसे होता है. सो बेसिकली ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट आवर सेंसर हैव देयर इज नो कलर इंफॉर्मेशन. आपका सेंसर क्या ग्रैब करता है, ओनली ब्राइटनेस. सिर्फ ब्राइटनेस का इंफॉर्मेशन रखते हैं. इट मींस ओनली आपका जो सेंसर है वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स द लुमिनेंस ओनली. सिर्फ लुमिनेंस कवर करता है, नॉट द क्रोमिनेंस, नॉट द इन टर्म्स ऑफ कलर. So that's the reason what happened over there. वहां हम क्या करते हैं, we put the mosaic of, if you are talking about the color filter array, there is a mosaic of filters. तो mosaic of filters क्या हो रहा है, उसके थ्रू जो है आपको कलर्स आपके पिक्सल को मिलते हैं. So it means आपका सेंसर लुमिनेंस ले रहा है. लुमिनेंस में कुछ ये नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा. लुमिनेंस इज रिमेन सेम. luminance value for the every pixel is remain same. But when it turns for the chroma subsampling, it means the जो आपका कलर का इंफॉर्मेशन आ रहा है उसका सैम्पलिंग किया जाता है. So for the every pixels brightness will be remain same. brightness में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But if there is a subsampling, आपका इमेज, आपका जो डेटा है कलर का, वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा. सो अगर देखा होगा कहीं आपने सबसैम्पलिंग का कोई सैंपल, देयर इज अ 4:4:4. सो जो तीनों, जो पहला 4 होता है, द फर्स्ट वन इज फॉर द द ब्राइटनेस वैल्यूज, दैट्स द लुमिनेंस, एंड अगेन इज द 4:4 इज लाइक द कलर वैल्यूज. सो उसमें क्या 4:4 मींस वहां पर कहीं पर भी कंप्रेशन नहीं है. देयर इज नो कंप्रेशन एट ऑल. काफी हाई एंड कैमरास होता है, द एरी एंड रेड के जो कैमरेज है, जब हाई एंड पे आप शूट करते हैं देन देयर इज अ 4:4 4:4 होते हैं. Then there is a 4:4:2. Then there is a 4:2:2. Then there is a 4:4:0. हमारा जो ज्यादातर DSLR है वो ये है कि वो 4:4:0 होता है या 4:2:0 होता है. अगर बहुत हाई एंड है इज द 4:4:2 होगा. द Sony A7 III have those kind of compression. These are the compression. अभी क्या हो रहा है, जब मैंने आपको बताया 4:4:4, इट मींस लुमिनेंस की वैल्यू सेम थी हर एक पिक्सल की. अगेन द 4, द क्रोमिनेंस की वैल्यू सेम थी. अगेन 4, सारे कलर्स की वैल्यू जो है वो सेम है सारे पिक्सल्स में. बट जैसे 4:4:2 हो रहा है, इट मींस 4:4:2 हो रहा है, इट मींस ये हो रहा है कि आपका जो लास्ट वाला डेटा है, लास्ट वाले पिक्सल में जो क्रोमिनेंस का इंफॉर्मेशन जाएगा, दैट विल बी डिवाइडेड. वो अपने साथ वाले पिक्सल को इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट्स द रीजन उसका इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, आधा हो रहा है. अगर ऐसे ही 4:2:2 होगा, वो क्या करेगा, वो साथ वाले को भी इंफॉर्मेशन पहला वाला भी दे रहा है पिक्सल, दूसरा वाला भी पिक्सल दे रहा है. 4:2:0 होगा, इट मींस तीसरे वाले को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कलर का. देयर इज नो इंफॉर्मेशन एट ऑल, है ना. तो वो जो ग्रीन ब्लू चैनल्स के जो इंफॉर्मेशन है वो बगल वाले पिक्सल्स को मिल ही नहीं रहे, वो डेटा उसे मिल ही नहीं रहा है. सो दैट्स द रीजन हमारे जितना भी DSLR है, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द DSLR पे जो आप क्रोमा शूट करते हो DSLR कैमरा में, अंटिल आप बहुत अच्छी लाइटिंग कर दो, फिर भी यू फील दैट
जो क्रोमिनेंस की वैल्यू, कलर की वैल्यू आपके हेयर पे जब क्रोमा आप कट करते हो, आफ्टर दैट यू फील दैट कुछ एजेस फिर भी दिखाई देते हैं. द रीजन इज बिकॉज द थर्ड चैनल डोंट हैव द इंफॉर्मेशन. और सबसे ज्यादा हमारा लुमिनेंस वैल्यू किसका सेंसिटिव है? द ग्रीन हैव द. और ग्रीन के चैनल सबसे ज्यादा पिक्सल्स में होते हैं, बट वो पिक्सल्स का इंफॉर्मेशन साइड वाले पिक्सल्स को मिला ही नहीं था इन टर्म्स ऑफ सब सैम्पलिंग. सो दैट्स द रीजन वो ग्रीन वैल्यूज आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर. तो कभी भी जब क्रोमा करें तो जस्ट यूज द हाई एंड कैमराज. एटलीस्ट द कैमरा हैव द 442 और एटलीस्ट 422. 440 जैसे ही वो, इट मींस लास्ट चैनल डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमिनेंस. क्रोमिनेंस का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इट्स जस्ट द जीरो. सो लाइंस आपको दिखाई देंगे. सर Yeah. सर ये, हाँ पूछ लो सर यहाँ पर FHD में IPV है, मतलब 60 FPS पे, और पर ऑल आई क्यों नहीं है? कहाँ पर? मतलब जो FHD 60 FPS IPV है, और FHD 60 FPS ऑल आई नहीं है. तो HD 60 FPS IPV भी है और ऑल आई भी है, पर FHD में नहीं है. FSD में क्या नहीं है? FHD में 60 FPS. FSD में 60 FPS नहीं. द रीजन इज वहां पर जब 60 FPS, once you are using the higher frame rate, right? तो क्या होता है, जैसे तुम हायर फ्रेम रेट यूज करते हो, तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी हायर, योर बिट रेट विल बी हायर, राइट? 60 पे शूट करोगे, 100 पे शूट करते, क्या होता है, बिट रेट ज्यादा हो जाएगा ना फॉर 1 सेकेंड. हम बिट रेट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? फॉर द द ट्रैवलिंग ऑफ योर डेटा, वट एवर द स्पीड ऑफ योर डेटा, जो कि या तो रिकॉर्ड हो रहा है या जो आपके डिवाइस पे रिकॉर्ड हो रहा है. तो विद इन 1 सेकेंड व्हाट इज द स्पीड, कि स्पीड क्या है आपके डेटा का. जब 60 फ्रेम पे करोगे, इट विल बी IPV, सॉरी आई. तो क्या होगा, ऑल आई पे इंफॉर्मेशन जो है उसका ज्यादा हो जाएगा, राइट? इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो योर प्रोसेसर मस्ट हैव दोस काइंड ऑफ अ स्पीड. आपके प्रोसेसर को भी तो चाहिए ना, इमेज प्रोसेसिंग यूनिट है, इट मस्ट बी फास्टर, उसको फास्ट होना चाहिए ना. बट उतना अगर कैपेबल नहीं है आपका प्रोसेसर, तो दैट्स द रीजन इस पे घटा देता है. इवन यू कैन सी ना, 4K पे जैसे ही जाओगे, विल नॉट एबल टू सी 60 फ्रेम. So many camera have those options. Those camera provided 4K, right? In terms of DSLR, in every camera, even in the cinema cameras, Red Dragon was supposed to do वो 8K तक जाता है, right? 8K कहते हैं ना, 8K cameras है, but 8K for what? 8K for the 60 frame only. But ये भी तो कहते हैं ना, Red Dragon जो है वो 300 FPS or something, 240 FPS. But 240 FPS on what? Only on when you are shooting on full HD. At that point of time 240 FPS, because SD में क्या होगा, information कम होगा, so you can capture more frame, because processor have to process those speed. उस process को certain bit rate तक का ही limitation होगा ना, उससे ज्यादा का process नहीं कर सकता है वो. So that's the reason ये जितने भी चीजें लगे होते हैं compression ना, वो frame के according लगे होते हैं. कि आप अगर किसी के पास कैमरा हो, which camera have the 4K module, 4K अगर options हो, you just check it out. कि जो हाई एंड होगा ना, like 100 FPS और 120 FPS, you are not able to capture it. Many camera have, once you use the 4K पे जैसे ही जाओगे, वो क्या होगा, सेंसर क्रॉप हो जाएगा. that full frame sensor become APS-C sensor. The reason is there's a more detail you need. तो ज्यादा डिटेल तुम्हारे सेंसर ने कैप्चर तो कर लिया, but the processor must have to process those things. तो अगर वहां पर उतनी स्पीड नहीं है, so that's the reason. यहीं पर क्या करते हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं दिया है कि यू कैन चूज इट, आप इसे चूज कर पाओ. सो दैट्स द वन रीजन कि यहाँ पर जो है 60 फ्रेम पे नहीं थी, बिकॉज 60 फ्रेम पे जाओगे, यू नीड अ हाई एंड. तो MOV जब तुम इस पे जाते हो, क्या कहते हैं, 4K पे जाते हो, देयर इज MOV ऑप्शंस, बट यू आर नॉट एबल टू शूट ऑन 60 FPS. तो मेनी कैमरा हैव दोस ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट. They must have to process on those speed, because अगर 1 सेकंड रिकॉर्ड करे, दैट्स बिकम 8 GB और 6 GB का बन रहा है, तुम्हारे जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे. सो वो डेटा क्या होता है, इफ यू आर शूटिंग ऑन 50-25 FPS, वो साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, इसमें कम 3 GB 2 GB 2.5 GB, तो डेटा आपको बड़े आराम से ट्रेवल कर जाएगा. सो दिस आर द ऑल हैव अ सर्टेन कंप्रेशन. आप जो भी DSLR यूज कर रहे हो ना, हर एक DSLR में वीडियो का अपना कंप्रेशन है. आप इवन you are using AVCHD, right? AVCHD के बाद भी कितने कोडेक होते हैं, guys have used the Sony cameras, right? So once again, सर जो इंटरपोलेटिंग होता है, फॉर एग्जांपल मतलब 420 या 422 पे हम शूट कर रहे हैं,
Yeah. तो सारे कैमरास इंटरपोलेट करके 444 बनाते हैं या फिर कुछ कुछ कैमरास बनाते हो नहीं, इंटरपोलेट कुछ करके? कुछ cameras, there is only few cameras that have the 4:4:4 ratio is वो भी तब when you are shooting on open gate or something is that kind of options. जब ओपन गेट पे शूट करते देन देयर इज अ 4:4:4. अभी कुछ कैमरे ने कर दिया बट इट्स नॉट लाइक दैट. डीएसएलआर ने कर दिया 4:4:4 एंड 10 बिट वीडियोस वी आर रिकॉर्डिंग बट इट्स द 4:4:2. वो 4:4:2 होता है. बट इन सिनेमा कैमरास द एरी हैव द 4:4:4 ratios. But the file size is too bigger. You need a, अगर उस पे रिकॉर्ड करे तो you need a bucket of hard disk for it. Suppose you are recorded in 4K. तो बहुत हैवी डेटा जो है वो ट्रेवल होता है उस पे. एंड इट्स फॉर द व्हेन यू आर डूइंग द वीएफएक्स काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट टाइम यू नीड व्हेन यू नीड द मोस्ट पोस्ट प्रोसेसिंग दैट टाइम इट्स नीडेड. बट द सिंपल ग्रेडिंग वंस यू आर डूइंग इज द 4:4:2 भी एनफ है तब भी चल सकता है. बट आवर कैमरा मोस्ट ऑफ द डीएसएलआर हैव द 4:4:0 बिकॉज जैसे ही 4:4:2 करेगा दे नीड अ सर्टेन स्पीड अ प्रोसेसर. तो प्रोसेसर के लिए उस स्पीड को देने के लिए अगेन क्या होगा, प्राइसिंग ज्यादा होगी, कंज्यूमर ओरिएंटेड फिर रहेगा नहीं. थोड़े से प्रोसेसिंग चेंज किया सोनी A7 S3 राइट. S3 प्राइस कहां पहुंच गया, काइंड ऑफ 3 लाख ना, 280 और समथिंग. हाँ सर. दिस ओनली रिकॉर्डेड 10 बिट वीडियोस. 10 बिट करता है ना, 10 बिट वीडियो करता है और क्या करता है आपका जो 100 FPS पे फुल फ्रेम ही रहता है, 100 FPS पे सेंसर क्रॉप नहीं होता राइट. यही कुछ ऑप्शंस हैं उसमें. बट सी द प्राइसिंग बिकॉज जब 100 फ्रेम पे 4K शूट 100 फ्रेम पे शूट करोगे तुम्हारा सेंसर भरा है, इट मींस हर एक पिक्सल्स का इंफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है व्हेन इट्स नॉट बिकम APS-C सेंसर. सो दैट्स द रीजन वहां प्रोसेसिंग की स्पीड भी तो बढ़ेगी ना, और आपका इमेज प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है राइट. सो वन थिंग इज अ कंप्रेशन. द अनदर की पहले जो होता था क्यों इतना कंप्रेस किया जाता था, रीजन इज डेटा तुम्हारे जैसे तुम एक चीज फील करना, वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन 4K राइट, and once you record on the FSD full HD, just feel the difference. तुम्हारा जो कैमरा है जल्दी हिट अप होना स्टार्ट होगा once you are recording on 4K. 4K पे जैसे रिकॉर्ड करते हैं, anyone feel that नहीं किया, just check it out. 4K पे करोगे तो वहां की प्रोसेसिंग थोड़ी स्पीड है. अगर तुमने सिस्टम पे कॉपी भी किया है, रेंडर भी कर रहे हो 4K, तब भी देखोगे कि सिस्टम जल्दी हिट अप होता है, साउंड जल्दी करने लगता है. तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू रिकॉर्डेड ऑन 4K, सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू विल रिकॉर्ड ऑन द फुल HD. सी द डिफरेंस इन हिट अप. और हमारा क्या है कि इन DSLR प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो एग्जॉस्ट एट ऑल. कोई विंडोज नहीं बना हुआ, कोई वेंटिलेशन नहीं है टू टू टेक दैट एयर आउट कि सेंसर और प्रोसेसिंग अगर हिट अप हो रहा है तो उसको कूल करे. देयर इज नो कूलिंग एट ऑल. इंटरनल कूलिंग कुछ है ही नहीं हमारे कैमरे में. कहीं पर है तुम बाहर यूज करो तो 4K जैसे यूज करते हैं ना, 4K पे देखोगे मेनी कैमरा हैव द, देखोगे 6 मिनट बाद रिकॉर्ड बंद हो जाता है और यू नीड द एक्सटर्नल रिकॉर्डर. होते हैं 6 से 7 मिनट के अलग अलग फुटेज बनते हैं. उस प्रोसेसिंग को इतने अगर तुम आधे घंटे से ज्यादा चलाओगे सो हो सकता है वो क्रैश कर जाए, हो सकता है इतना हिटअप हो जाए कि वो सिग्नल्स आने लगे तुम्हें कि बहुत बॉडी हिटअप हो रहा है. सो HD की प्रोसेसिंग, फुल HD की प्रोसेसिंग एंड 4K की प्रोसेसिंग डिफरेंट है. सो दैट्स द रीजन वहां पर भी क्या किया है कि चीजों को कम कर दिया है, द टाइम लिमिट कम कर दिया है, द फ्रेम रेट कम कर दिया है, बिकॉज सर्टेन लिमिटेशंस हैं तुम्हारे कैमरा बॉडी की भी in terms of temperature, in terms of rating. So nowadays the camera is coming की जिसमें तुम देखोगे that the Panasonic introduced few cameras, S1 some camera have कि कूलिंग दिया हुआ है, कुछ एग्जॉस्ट दिया हुआ है जिसमें कि जो कूल होता है राइट. इवन दिस इज आल्सो वन रीजन कि 29.59 सेकेंड्स पे वो ब्लॉक हो जाते थे हमारे रिकॉर्डिंग. अभी भी यहाँ दिख रहा है आपको 29.59 ना, यहाँ दिख रहा है ना मिनट, द टाइमिंग रिमेन 29.59. चाहे तुम कोई भी मेमोरी कार्ड लगा दो 128 256 देयर विल बी 29.59. इट मींस इसके बाद तुम्हें फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स द वन रीजन कि हम कभी भी अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग कैमरास और DSLR कैमरास में डिफरेंस पूछ देना तो दिस इज द रीजंस. आप ये भी कह सकते हो कि इन ब्रॉडकास्टिंग कैमरास में कभी हमें कट नहीं करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ DSLR कैमरा वी हैव टू कट इट. As a one reason 30 मिनट्स पे सपोज लाइव चल रहा है, तुम 30 मिनट्स पे कट करोगे नहीं ना. सो अगर तो सिनेमा कैमरा में भी है बट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग कैमरास वी कैन नॉट यूज DSLR फॉर द ब्रॉडकास्टिंग कि 29.59 पे कट जाएगा. बट अब कैमरेज हैं जो ज्यादा उससे ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं. बट द मेन रीजन इज कि जो 29.59 का है, द मेन रीजन इज द मार्केटिंग और सेल्स. बिकॉज कोई भी कैमरा दैट इज रिकॉर्डेड मोर देन
30 minutes, it will consider in the video cameras. कोई भी कैमरा जो 30 minutes से ज्यादा रिकॉर्ड करता है, it will consider in the video cameras. And the video camera have the different excise duty, and the DSLR have the different excise duty. That's also one reason. इसलिए लोग क्या करते हैं 29.59 तक देके दे दिया ताकि एक्साइज ड्यूटी कम हो, तो मार्केट में आप आराम से कैमरा बेच सकते हो। एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगा, प्राइसिंग बढ़ जाएगी, है ना। तो एक रीजन ये भी है 29.59 का। दूसरा रीजन प्रोसेसिंग का भी कि हिटअप जल्दी हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ आप कभी वीडियो रिकॉर्ड करो 1 से 2 घंटे, इवन योर मेमोरी कार्ड इज गेटिंग हिटअप, कि मेमोरी कार्ड तक हिट हो जाते हैं तुम्हारे, है ना। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये पिक्चर में ना कोई भी फ्रेम रेट सर 60, 50, 24 या 30 नहीं है, सब पॉइंट में क्यों है सर? 59.94 ये इट्स अ क्वेश्चन फॉर द ब्रॉडकास्टिंग, इज द फॉर द साउंड सिंक। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, इसलिए होता है बिकॉज जो साउंड आपका चल रहा है ना, साउंड सर्टेन फ्रेम के बाद साउंड की स्पीड आपके फ्रेम की स्पीड सिंक नहीं हो पाती है। अगर मैं 60 पे शूट होगा तो सिंकिंग द साउंड, अगर लाइव चल रहा है साउंड सिंक कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये 9.5 होता है कि सर्टेन फ्रेम के बाद साउंड और ये दोनों सिंक हो जाए, इसलिए 9.94 होता है ना। ये सर्टेन फ्रेम है, बट वो टॉपिक लंबा चल जाएगा, अगर वो डिस्कस करेंगे तो सम अनदर डे विल डिस्कस ऑन इट, इसलिए ये 5। हाँ बोलिए। सर बट पाल कंट्रीज में तो साउंड सिंक वही 25, जैसे 1/25 तो 1/25 नहीं, वहां भी, वहां नहीं 25 हमारा अभी इसमें भी देखो ना 23.59 भी आएगा। अगर आप यहाँ पर तो ये हाँ 23.94 आएगा। 24.98 है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये दिख रहा है ना 23.98 ना, वो सर्टेन है कि साउंड सिंक नहीं होता, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग इट ना, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। सर ऑल आई आपने क्या बताया? इंटर फ्रेम नहीं, कंप्रेशन? all I is intra. All I is intra frame. So, Yeah, intra frame compression. It means here is the every individual frame have their own compression. then sir IPV is inter frame compression. Inter frame compression. It means there is a group of pictures will be compressed, or it will be the 6 pictures, group of pictures, or the 8 group of pictures, or the 4 or 3. It's depend upon the camera. I is intra, and I just remember like that. Na, I is intra. है ना, उससे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। IPV is the interframe compression. So most of the camera have the interframe compression. पहले जितने भी कैमरास थे सब में interframe compression ही होते थे। The Canon introduced new version with the Mark IV basically. It's the all eye. ये जो नया compression आया है, ये Kodak आया है, that Canon introduced. Okay. So firstly that we have discussed the compression. The second point that you can add on is your dynamic range, right? You know that the DSLR camera and the cinema camera का dynamic range ज़्यादा होगा. The first thing that we discussed, the dynamic range. Dynamic range is nothing. It's very simple. It's the brightest bright and darkest dark. The capacity of your camera to read brightest bright and darkest dark. That's the dynamic range, है ना? एक्सपोजर वैल्यू कहीं पर तुम्हारा 1.4 आ रहा है, समवेयर देयर इज अ 16 और 32, दोनों को जो कैमरा एक साथ देख रहा है, इट मींस व्हिच कैमरा हैव द ग्रेटर डायनामिक रेंज. सो इफ यू कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ सिनेमा कैमरा एंड DSLR, तो सिनेमा कैमरा का डायनामिक रेंज हमेशा ज्यादा होता है. देखो इट इज अ 15 स्टॉप. और बिफोर आई थिंक फ्यू ये रूल भी था किसी कंट्री में, आई जस्ट फॉरगेट दैट ब्लॉग, कि 10 स्टॉप से ज्यादा का DSLR नहीं होता था, बिकॉज उसके कारण वीडियो कैमरा सिनेमा कैमरा नहीं चलते थे. सो 10 स्टॉप से ज्यादा का नहीं होता, बट अब ये रूल नहीं है. अब नाउ द मैन्युफैक्चरर कंप्लेइंग द 14 प्लस स्टॉप एंड 13 स्टॉप और 12 स्टॉप. द मोस्ट ऑफ द DSLR इज मोर देन 10 स्टॉप. बट आप अभी देखोगे कि एरी का जो कैमरा है या इसका कैमरा है, दे आर कंप्लेनिंग दैट द 15 प्लस स्टॉप और 16 प्लस स्टॉप, राइट. अब कुछ दिन बाद मुझे लगता है आंख से भी ज्यादा दिखने लगेगा. और हमारे आंख का कितना है? इज द 20 स्टॉप. So basically आप एक इमेज दिखाता हूं मैं. What's the differences? ये इमेज दिख रहा है आप लोगों को, right? See the left side image, no? The right side image. I'm talking about the dynamic range. Now see the detail in you know the nameplate जो लगा है वहां जो नाम लगे हैं उसमें, the left hand side and the right hand side. See the texture of the surface of this one. और अगर किसी का अपना वो जूम हो सकता है डिस्प्ले या इसका, वो तो बाद में भी देख सकते हो या जूम कर सकते हो. सी द डिटेल द इनसाइड द शॉप, जो शॉप के अंदर की जो डिटेल है, सी दोस थिंग्स.
द सेटिंग इज रिमेन सेम, इस दोनों में सेटिंग सेम है, अपर्चर सेम है, आईएसओ सेम, एवरीथिंग इज सेम, लेंस इज सेम, सब सेम है ना। बट हैव यू सीन द डिफरेंस? क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? यस सर, मेरा कर्सर दिख रहा है, मेरा कर्सर अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो यस Yes, सर, sir. ठीक है। नाउ तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सी द डिटेल ओवर हियर, इज देयर अ डिटेल इन दिस नेम प्लेट? यहाँ सारा डिटेल बर्न आउट है, राइट? यहाँ का जो Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट है वो गायब है। गायब किस लिए? इन टर्म्स ऑफ दोनों चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर हाइलाइट्स भी हैं, शैडोज भी हैं, बिकॉज दैट नेम इज लिटिल बिट डार्कर, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको दिखाने के चक्कर में यहाँ देखो क्या हुआ है, सारा का सारा बर्न आउट है। देयर इज नो डिटेल एट ऑल इन, देयर इज नो टेक्सचर, यू कैन से दैट देयर इज नो टेक्सचर इन बोर्ड। जो येलो कलर के बोर्ड है उसमें कोई टेक्सचर नहीं है, राइट? इवन जो ये एरिया है जहां ये पॉइंट किया हुआ एरो एरिया, सी दिस एरियाज, हाउ मच बर्न इट इज, है ना। अगेन ये नाम देखिए आप जो स्टार्टिंग का है, एंड सी द टेक्सचर इन दिस वन। क्लियर दिख रहा है इसमें? अगर फ्रेम बड़ा होता तो मोर विजिबल। नाउ सी द टेक्सचर ऑफ दिस वन, यहाँ का देखो, सी द डार्कर जोन, राइट? और यहाँ का टेक्सचर देखिए, फोरग्राउंड का टेक्सचर देखिए आप, इज अ डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? इधर के नाम में डिफरेंस देखिए यार, इधर के नाम में डिफरेंस देखिए, दिख रहा है? अब शॉप के अंदर का देखोगे द मेनी थिंग्स इज बर्न आउट, बट इसमें देखोगे शॉप के अंदर में कि यहाँ बर्न नहीं हो रहा है, देयर इज अ डिटेल एट ऑल, वो बर्न ओवर ब्राइट नहीं हो चुका है, आपके रेंज से ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है, ये डायनामिक रेंज से बाहर के शॉट हैं इसके। whatever the highlight is there, highlight burn करा है, it means it's not the the within the dynamic range of your camera, ये तुम्हारे कैमरे के डायनामिक रेंज के अंदर नहीं है, ये beyond the dynamic range, so that's the reason वहां भी टेक्सचर नहीं आ रहा है और यहाँ भी टेक्सचर नहीं आ रहा है। बट इन दिस वन जस्ट सी, यहाँ पर टेक्सचर्ड आपको मिल रहा है। सो दैट्स द वन डिफरेंस, ये विजिबल है, ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ये दूसरा इमेज देखते हैं। In सर terms वो of स्क्रीनशॉट इमेज था सिनेमा कैमरा का। this one, हाँ वीडियो का स्क्रीनशॉट है। जी जी, I'll share you a link guys, I have a link of this videos, तो उसमें और क्लियर डायनामिक रेंज समझाया हुआ है ना, तो वो मैं लिंक शेयर कर लूंगा आप लोगों से। There's a video tutorial in which they are also talking about the lens, cinema lenses also, है ना। तो मैं वो वाला नहीं भेजूंगा, इसका एक और पार्ट है जिसमें सिर्फ डायनामिक रेंज और सिनेमा कैमरा एंड डीएसएलआर एंड बेसिकली दे कंपेयर द Mark III एंड ये जो दूसरा कैमरा इज द Blackmagic पॉकेट कैमरास। ओके, सो थोड़ा सा सेंसर और उस दोनों पे है, बट इट्स मोर अबाउट द डायनामिक रेंज। सी द सेकंड इमेज नाउ, just see the difference, इतना डिटेल because screenshots उतना डिटेल नहीं होगा, but see the difference ना in the sky। Have you seen the difference? Because the तुम्हारे सेंसर की कैपेसिटी है ना डार्केस्ट डार्क एंड ब्राइटेस्ट ब्राइट रीड करने की, इसमें क्या हो रहा है, डिटेलिंग खत्म हो रही है, राइट? इसमें देखोगे पूरी डिटेलिंग खत्म हो गई। इन दिस वन स्काई हैव द सर्टेन डिटेल, यहाँ पर डिटेल दिख रहा है। No, the third point is, so dynamic range explain कर लोगे आप लोग, because मैं अलग से डायनामिक रेंज मैंने बताया ना आप लोगों को। Yes, sir. डिस्कस डायनामिक रेंज में डिस्कस कर चुका हूँ ना, इसी क्लास में कर चुका हूँ, तो डायनामिक रेंज पता है। अगर ज्यादा वो अगर आपके पास पॉइंट्स है 10 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ये लिख दोगे, क्या क्या डायनामिक रेंज हो गया आपका, कंप्रेशन हो गया, एंड द थर्ड वन वी विल डिस्कस ऑन, बिकॉज ये जो रिकॉर्डिंग टाइम वाला है ये चीज अब खत्म हो गई, तो रिकॉर्डिंग वाला नहीं डिस्कस करना। जो मेन पॉइंट्स है जिससे कि इमेज के क्वालिटी पे फर्क आएगा ना, जस्ट डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। जैसे इमेज की क्वालिटी पे क्या फर्क है, कंप्रेशन से क्वालिटी पे फर्क आ रहा है, कंप्रेशन से पोस्ट प्रोडक्शन पे फर्क आ रहा है, राइट?
बिकॉज पोस्ट में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं ग्रेड करने के, राइट? आप पोस्ट में बहुत कलर के साथ नहीं खेल सकते इफ देयर इज अ सर्टेन कंप्रेशन। इस टाइप के कंप्रेशन होंगे पोस्ट में, आप बहुत कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सो कंप्रेशन से ग्रेडिंग पे इफेक्ट होता है। डायनामिक रेंज से सर्टेन द रेंज, द जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो उस पर इफेक्ट पड़ेगा आपका, कि ब्राइटेस्ट ब्राइट एंड डार्केस्ट डार्क का नहीं कर सकते हो। सर्टेन रेंज ऑफ लाइटिंग रेशियोज आप नहीं कर सकते हो, जहां पर कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है उसमें आप डीएसएलआर कैमरा से शूट नहीं कर सकते हो। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट रिलेटेड टू डायनामिक रेंज। आप एड ऑन कर सकते हो कि जब हाईली कॉन्ट्रास्ट सीन मुझे कोई शूट करना होगा, वी आर नॉट एबल टू कैप्चर थ्रू द डीएसएलआर कैमरास, या तो ब्राइटनेस के साथ जाएगा या वो डार्कनेस के साथ जाएगा। तो आपको क्या होगा, उतना कॉन्ट्रास्ट रेंज क्रिएट नहीं कर पाओगे, और कर भी पाओगे तो कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर दोज थिंग्स। Then the most important point is your shutter. That's the global shutter. दो शटर होते हैं, ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर, राइट? होता है ना? हाँ सर। how global shutter work, how rolling shutter work, you know that most of जितने सिनेमा कैमरास हैं that are the global shutter, अब कुछ DSLR हैं जिसमें कि global shutter, they are saying that the global shutter, how it perform, जो आपका रोलिंग शटर है वो क्या करे, काइंड ऑफ स्कैनर दे परफॉर्म, राइट? वो अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, दे जस्ट वर्क लाइक द स्कैनिंग, स्कैन करके आ रहा है। सो इट मींस इफ समथिंग दैट इज इन मोशन, वो क्या होगा, वो बैंड सा फील होगा आपको, कि वो लगेगा कि थोड़ा सा बैंड हो गया है। in terms of rolling shutter जब यूज हो रहा है, because your camera is movement or either your character is a movement, तो कुछ भी जो भी मूवमेंट में है और there is a faster than those movement, तो होगा क्या कि जैसे ही रोलिंग शटर आ रहा है उससे फास्ट आपकी स्पीड है, तो ऊपर का इमेज तो एक्सपोज हो गया, नीचे का एरिया क्या हुआ, सेकंड वाले पिक्सल पे जाके दूसरी जगह जाके एक्सपोज हुआ। सो लाइन जो है वो कर्व हो जाएगी, काइंड ऑफ फॉर एन एग्जांपल यू सीन दिस थिंग्स मेनी टाइम्स। कोई फैन का या किसी चीज की ऐसे फोटोज क्लिक करी होंगी, वीडियोस बनाया होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट दिखते हैं ना, डायना थोड़ा सा राउंड हो गया है फैन का, या कुछ मूविंग सब्जेक्ट में, और अदर अगर तुम बहुत फास्टली पैन करो, फील दैट द स्ट्रेट लाइन इज लिटिल बिट द कर्व, इट फील लाइक लिटिल बिट कर्व, ऐसा कुछ इमेज होता है। So most of the cinema camera have the the global shutter, that's the one advantage. ग्लोबल शटर कैसे काम करता है, जस्ट लाइक समझ लो सेंटर से एक ही साथ सारे एरिया को एक्सपोज कर देता है, इसकी जो लाइट है वो एक ही बार में चली जाती है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पर स्कैनिंग नहीं चल रहा है, सो ग्लोबल शटर डोंट हैव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। Just read it once now. जी, ये ग्लोबल शटर रोलिंग शटर क्लियर है ना? यस सर, यस। Yes, sir. ओके, एक और इफेक्ट होता है इसमें, पहले इमेज दिखा देता हूँ, थोड़ा रिलेट करोगे आपको। इट्स कॉल्ड द मोयर इफेक्ट। कैसे पढ़ लेते हैं सर हाँ हाँ, सर मॉयल इफेक्ट किस में ज्यादा होता है, ग्लोबल शटर में? नहीं नहीं, मोयर इज डिफरेंट थिंग्स। अब इसमें आप कंफ्यूज मत करना, ये जो ग्लोबल शटर रोलिंग शटर है ना, ये कोई भी इमेज, इसमें मोयर में सारे लाइंस आपको सीधे ही दिख रही हैं, इसमें मूवमेंट होगा नहीं होगा बट मोयर इफेक्ट क्रिएट होगा। इसमें Okay, sir. मूवमेंट की कोई जरूरत, स्टैटिक कैरेक्टर भी, हैव यू सीन मेनी टाइम्स द प्रोडक्शन टीवी शोज देखते हो या कुछ भी ऐसा, जो जिसकी शूट पे जैकेट पे या शर्ट पे ऐसे पैटर्न्स, यू फील दैट वहां को जिगजैग सा दिखता है, यस सर। तो उसमें मूवमेंट तो नहीं है बट फिर भी दिखता है ना। हाँ सर, दिखता है सर।
ये होता क्यों, अब ये समझो, जस्ट रीड इट वंस ना, थोड़ा क्लियर होगा। हाँ जी, ये बड़ा सिंपल से समझने के लिए बता देता हूँ इसे मैं, कि पिक्सेल्स के ग्रिड होंगे, राइट। जो आपके पिक्सेल्स हैं आपके सेंसर पे, उसके ग्रिड होंगे, पिक्सल का डेप्थ होता है, राइट। जैसे साइज ऑफ पिक्सेल्स। अब हो क्या रही, जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, जब डिजिटल सॉरी डीएसएलआर पे जब लाइट आती है ना, मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड, वो ज्यादा लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है। एक तो ड्यू टू उसकी जो हॉसिंग है उसकी वजह से भी, दूसरा क्या होता है कि जो ग्रिड की लाइन है ना, उस लाइन से छोटे तुम्हारे पिक्सल्स के साइज हो जाते हैं। बिकॉज तुम्हारा कैमरा कितने मेगापिक्सल का होता है, तो डीएसएलआर कैमरा होता है तो 30 मेगापिक्सल्स, 40 million pixels, right? We are talking about those things. So there's a 40 megapixels. So on that sensor, there's a 40 million pixels. So what happened? तुम्हारा जो सेंसर है ना, काफी छोटा हो जाता, सॉरी तुम्हारा जो पिक्सल है वो बहुत छोटा हो जाता है, और ये जो लाइन है उस पिक्सल से बड़े हो जाते हैं। सो इसलिए क्या होता है कि वो जो लाइंस, जो ग्रिड बन रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारे सेंसर के साइज, तुम्हारे पिक्सल के साइज से भी ज्यादा हो रहा है। वो क्या लग रहा है, स्कैटर्ड टाइप का तुम्हें दिख रहा है, स्कैटर्ड होता भी है, और वो लाइंस तुम्हें डबल लाइंस दिख रहे हैं, वो क्लियरली एक पिक्सल में इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रहा है उस लाइन का, बिकॉज तुम्हारा पिक्सल ही अब छोटा हो गया इन टर्म्स ऑफ वो जो ग्रिड और वो जो लाइंस बन रहे हैं। बट तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर, सेंसर का साइज, सेंसर का बिट डेप्थ, सेंसर का सॉरी पिक्सल का डेप्थ बड़ा होता है, सो देयर इज अ मोर इंफॉर्मेशन। पिक्सल का साइज बड़ा होता है, सो देयर इज अ मोर इंफॉर्मेशन। तो वहां पर क्या होता है, लाइंस जल्दी नहीं बनते हैं, बिकॉज पिक्सल साइज इज बिगर देन द व्हाटएवर द साइज ऑफ योर ग्रिड। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिक्सल साइज जो है वो छोटा है, पिक्सल इज स्मॉलर देन व्हाटएवर द साइज ऑफ योर ग्रिड एंड व्हाटएवर साइज ऑफ योर पैटर्न। सो दैट्स द मेन रीजन देयर इज अ मोर इफेक्ट हैपनिंग। यहाँ पर मोर इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अब मायर इफेक्ट सिनेमा कैमरा में नहीं होगा, वहां पर भी अगर ऐसे पैटर्न आ गए जो बहुत छोटे हैं तो यू फील दैट देयर इज अ मायर इफेक्ट, है ना, वहां पर भी मायर इफेक्ट होगा। सो दैट्स द रीजन, देखोगे जितने भी हमारे सिनेमा कैमरास हैं अब इनबिल्ट उसमें होते हैं, यू कैन चेंज इट, सेंसर के आगे लगा रहता है, यू कैन चेंज, इट्स कॉल्ड द OLPF फिल्टर, ऑप्टिकल लो पास फिल्टर। नाम सुना होगा सबने, इज द ऑप्टिकल लो पास फिल्टर। हर एक कैमरे में लगा होता है, there's a variety of optical low pass filters, but inbuilt वो सब में होता है। The reason to use optical low pass filter is to reduces the Moir effect। तो Moir effect को reduce करने के लिए OLPF filter लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, जैसे kind of mistiness थोड़ा सा तुम्हारे पैटर्न में दे देता है। मिस्टीनेस इन द सेंस लिटिल बिट यू नो द आउट ऑफ फोकस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जब तक ये पूरा शार्प फोकस नहीं होगा तब तक ये लाइंस क्लियर दिखेंगे। जब लाइन प्रॉपर्ली फोकस होगा तभी दिखेंगे ना। जब ये हल्का सा आउट ऑफ फोकस दिख रहा है आपको, काइंड ऑफ मस्टीनेस इज देयर, या ये क्या होगा, ये जो पैटर्न है इतने विजिबल नहीं होंगे, इट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ फोकस। सो दैट्स द रीजन OLPF फिल्टर क्या करता है, वो उस शार्पनेस को थोड़ा सा कम कर देता है। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टेप, और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसे कुछ तुम्हारे सामने जिसमें इतने सारे लाइन है, यू कैन यूज OLPF फिल्टर्स। बट मोस्ट ऑफ द जो कैमरास हैं हमारे सिनेमा कैमरास, देयर इज अ OLPF फिल्टर, सेंसर के आगे लगा रहता है, यू कैन चेंज इट, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के होते हैं, तो सो यू कैन चेंज इट। So is the 4 point or 5 point? 4 point, no? The Moir effect, your shutter, dynamic range, compression. चार चीजें हुई ना।
Yes, sir. Yeah, सर yeah. ये ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर के साथ सेंसर का कोई रिलेशन है मतलब? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. इट्स जस्ट द काइंड ऑफ, समझो शटर क्या करता है, शटर इज गिविंग द लाइट टू योर सेंसर, राइट? शटर इज जस्ट गिविंग द लाइट टू योर सेंसर. सेंसर क्या करे, जस्ट द कर्टन्स जिसने रोक रखा है वो उठेगा तो लाइट जाएगी. नाउ द पैटर्न ऑफ कर्टन्स इज डिफरेंट. जैसे होता है ना घर में, तुम कोई विंडोज ऐसे हटाता है, कोई ऊपर इस कर दे, लाइक. तो रोलिंग, जो रोलिंग मतलब व्हाट, जैसे शटर ऊपर से नीचे आ रहा है काइंड ऑफ, राइट? तो वो ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर सब्जेक्ट और कैमरा हैव द मोर स्पीड देन दोस. कि शटर जो नीचे तक आ रहा है उससे ज्यादा की स्पीड हो रही है, फील लाइक बेंडिंग, बिकॉज ऊपर से आया तो ऊपर का एरिया एक्सपोज हुआ, राइट? तब तक मैं मूव कर चुका हूं, तो मेरा दूसरा एक्सपोजर नीचे आ गया ना, ऊपर का लाइनर वो यहाँ एक्सपोज हुआ है, तो इट फील लाइक देयर इज अ लिटिल बिट कर्व, जो कि इस इमेज में मैंने दिखाया ना आपको. हुआ होगा, व्हील्स हैं, गाड़ी चल रही है, राइट? जब मूव हुआ होगा, इसका अपर वाला पार्ट है वो पहले एक्सपोज हो गया, ये आके बाद में हुआ, बिकॉज वो जस्ट लाइक स्कैनिंग वो रोल कर रहा था. ग्लोबल शटर क्या है, वो सेंटर्ड से लाइट एक बार में ही देता है, काइंड ऑफ. ये समझो जैसे अब, हाँ बोलिए. Sir, it's also give a blur image sometime. या बिकॉज वो Blurry, स्पीड, बिकॉज उस पिक्सल्स पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे आपने फोकस कर रखा था, वो शार्प कैसे होगा? इमेज का तो पोजीशन ही नहीं रहा ना, इमेज का पोजीशन ही चेंज हो रखा है. सो वो जब आप मोशन में, या फिर आप, ये ज्यादा विजिबल होता है आपको. एक्चुअली क्या है कि कार जब इतने मोशन में होगा, नो वन नोटिस दैट, राइट? इतना नोटिस तो कोई नहीं करेगा, बट अगर आप टाइमलाइन पे लेके देखते हो, यू फील दैट इमेज थोड़ा सा जो है वो ब्लर भी है ना? या फिर ऐसे कुछ इफेक्ट्स आपको दिखेंगे. सो प्रॉपरली ये क्या होता है, थंबनेल लेने के टाइम पे ऐसे नॉर्मल तो ये मोशन में है, किसी को इतनी स्पीड में नोटिसेबल नहीं है. ये हाई स्पीड में जब शूट करते हैं तब ये नोटिसेबल होता है. सो ऐसा नहीं कि डीएसएलआर से नहीं बनाते हैं, डीएसएलआर से बनता है. नो वन नोटिस दैट कि यार रोलिंग शटर है और फील हो रहा है मुझे, बिकॉज उसको पॉज करके तो आप देखोगे नहीं ना. समथिंग इज अ मूवमेंट, वो मूवमेंट नहीं होगा. इतने दिनों से हम इंटरलेस पे वीडियो देखते आए हैं. हैव यू फिगर आउट द जिटरिंग इफेक्ट या आउट ऑफ फोकस हैंड दिखा कभी किसी को? नॉर्मली हम देखते हैं ना, चाहे यू आर वाचिंग द न्यूज चैनल्स और एनीथिंग दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री और कुछ भी, सब तो इंटरलेस ही था, बट हमें नोटिस थोड़ी हुआ, बिकॉज हम मूवमेंट में वॉच कर रहे थे, मूवमेंट में देख रहे थे, तो इतना हमें पता नहीं चलता. बट टेक्निकल टर्म है तो हमें बताना पड़ेगा. So, sir, how the global shutter work? मतलब like it's वो इस काइंड ऑफ द सेंटर्ड से ही लाइट देती है, सेंटर से. समझो अपर्चर वाले जो होल्स हैं, जस्ट लाइक दैट लाइट सीधी स्ट्राइक होती है. और अभी मेरे पास पीएनजी था, बट पीएनजी इस पे प्ले नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक रोलिंग, समझ लो रोल हो रहा है, ये सेंटर्ड से लाइट दे रहा है, काइंड ऑफ. हैव यू हर्ड अबाउट द लीफ शटर? लीफ शटर का नाम सुना है? लीफ शटर जो है वो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, बट वो एक्चुअली लीफ शटर क्या होता है, वो लेंस में भी होता है. लीफ शटर वाले लेंस आते हैं, जस्ट ट्राई टू गो द गूगल एंड सर्च इट, देयर इज अ लीफ शटर. वो क्या होता है, जैसे अपर्चर के ब्लेड्स होते हैं, अपर्चर का ब्लेड्स अगर आप ओपन करोगे तो कहाँ से ओपन होगा वो? व्हेन यू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट फ्रॉम द सेंटर ना, राइट? yeah. क्लोज होता है सेंटर से, ओपन होता है सेंटर से, राइट? तो सपोज करो ना, जब सेंटर से लाइट हिट करेगी किसी चीज पे तो एक बार में करेगी ना. हाँ yes. और जब कर्टन्स लगा रखा है और शटर लगा रखा है, शटर को मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ, तो खोलूंगा क्या होगा, धीरे yeah. धीरे लाइट आएगी. दिस काइंड ऑफ स्कैनिंग इज गोइंग ऑन. तो तब तक अगर फास्टली कुछ चीजें मूव कर गई तो वो कहीं ना कहीं बैंड तो होगा ना, तो Yeah. वही बैंड हमें दिखाई देता है. बट वो इतने मोशन में होते हैं कि हमें तब पता नहीं चलता. बट अगर टाइमलाइन पे लोगे एंड यू आर डूइंग द फ्रेम बाय फ्रेम और एडिटिंग समथिंग एल्स, यू फील दैट कि यहाँ पर जो है वो कर्व है, यहाँ उतना शार्प नहीं है. सो हाई एफपीएस पे शूट करने में, ऐसी चीजें करने में, दैट टाइम यू बहुत फास्टली पैन कर रहे हो, स्विच पैन कर रहे हो, पैन कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट कि हमारे पास ग्लोबल शटर हो. अगर नॉर्मल शूट चल रहा है देन व्हाई नीड दिस वन. बट हाँ, हमें अभी डिफरेंस बताना है, सो विल टॉक अबाउट इट कि ये होता है. तो वी जस्ट फिगर आउट द 4 पॉइंट, राइट? है ना? अब आप और भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग टाइम के बारे में बात कर सकते हो, बिकॉज you can operate it for the 4 hour 5 hours, right? You're not able to any DSLR camera for the 5 or 6 hours. 5 घंटे रिकॉर्ड कर लो, see how much hit up it will be, right? बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, होता है ना. एंड दूसरी बात की इजी टू यूज नहीं है, तुम उसे हैंडल भी बहुत अच्छे से उसे यूज कर सकते हो. इन टर्म्स ऑफ अगर और भी बात करें, अगर ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऐड ऑन द ऑडियो जैक, बिकॉज देयर इज ओनली 3.5 जैक इन सिनेमा कैमरा, देयर इज ऑडियो जैक एंड एट ऑल.
कि तुम रिकॉर्ड अच्छे से कर सकते हो, राइट। यहाँ पर क्या सिर्फ 3.5 है, उसमें ऑडियो के अलग अलग जैक होते हैं, देयर इज अ जैक फॉर द डिस्प्ले फॉर टू टेकिंग द आउटपुट ऑफ इट, तो HDMI आउटपुट है। सो यू कैन जस्ट डिस्कस द आउटपुट। एक जो मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया, यू कैन जस्ट डिस्कस द आउटपुट ना। इन सिनेमा कैमरा इज हाउ मेनी आउटपुट इज देयर, 3 3 4 2 2 3 3 तो सिर्फ HDMI होते हैं, राइट। Then the BNC output is there. The no camera have the BNC output. हमारा जो DSLR है, the main disadvantage of it, there is a no BNC cable. तो कभी लॉन्ग वायर वाली कोई चीजें हो जिसपे हमें शूट करनी हो, we are not able to shoot it through the DSLR. DSLR से उसे नहीं लगा सकते because there is no connector at all. कोई कनेक्टर ही नहीं है, तो DSLR आप लगा ही नहीं सकते हो। कि वायर वाली कोई चीजें हैं जो 60 फीट 200 फीट उतने दूर से मैं ले रहा हूँ, कैमरा कहीं लगा के छोड़ दिया है, तो ये DSLR कैमरा में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी because there is no BNC output. You can say that there is a HDMI output. HDMI only comes in 30 feet. 30 feet से ज्यादा का HDMI नहीं आता है. So you need a certain extender जो extend करते जाएगा. Suppose you are using on 200 feet cameras, 200 feet पे कहीं mount कर रखा है, बीच में इतने सारे कनेक्टर लगा रखे हैं. इट्स ऑल्सो द कंप्रेस योर डेटा, कहीं ना कहीं तुम्हारा डेटा आर्टिफैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं डेटा की क्वालिटी खराब होगी. द अनदर थिंग्स, इतने सारे जॉइंट लगा हुए, कहीं ना कहीं से अगर निकल गया, अगेन यू हैव टू गो एंड वॉच इट कि कहाँ हुआ, इतने सारे जॉइंट्स लगा रखे. तो यू नीड द BNC केबल. BNC सर्टेनली क्या होता है, अच्छे से स्क्रूड हो जाता है BNC, तो उसके बाहर होने के चांसेस कम होते हैं. सो द मेनी एस्पेक्ट दैट कैन लिख सकते हो. एक छोटा सा और 2-3 पॉइंट्स में बता देता हूँ अगर मैं सिनेमा कैमरा से ही कर रहा था तो इफ दे आस्क फॉर द डिफरेंस बिटवीन सिनेमा लेंसेज एंड द फोटोग्राफिक लेंसेज. अभी ये कैमरा बॉडी की बात हुई. इफ दे आस्क फॉर द सिनेमा लेंस एंड द DSLR lenses, the main difference is the optical quality. The first difference is the optics the cinema camera have and the जो DSLR तुम्हारे होते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. The best quality is optics they use for the cinema cameras. It takes 7 years, 6 years or 8 years for to coating it. Coating कर करके रखा जाता है, not for the DSLR. कभी सुना है सिनेमा कैमरा लगातार हर एक साल आते रहते हैं, तो लेंस भी नहीं आते इन टर्म्स ऑफ DSLR. लाइक कैमरा बॉडी हर एक 2-3 महीने पे कंपनी अनाउंस करती है ना. बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट द लेंसेज कि लो आज 16mm निकाला, कल 50mm निकाला? हैव यू एवर हर्ड दैट? लाइक कैमरा जैसे निकल रहा है मार्केट में वैसे ही लेंसेज निकलते नहीं निकलते ना, बिकॉज इट टेक्स टाइम, बिकॉज उसको कोटिंग करके रखा जाता है, कोटिंग सर्व होता है, सो इट टेक्स टाइम टू मेक अ लेंसेज. सो द इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल क्वालिटीज द रीजन इज द जो तुम्हारे फोटोग्राफिक लेंसेज हैं, जो तुम्हारे सिनेमा लेंसेज हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. चाहे तुम ऑप्टिकल एबरेशन की बात कर लोगे, पेरिफेरल इल्यूमिनेशन की बात कर लोगे, सारी चीजें ये मैं बता चुका हूँ. पेरिफेरल इल्यूमिनेशन, ऑप्टिकल एबरेशन, ये दोनों में इन टर्म्स ऑफ सिनेमा कैमरा एंड DSLR में ज्यादा होता है, सिनेमा कैमरा में मिनिमाइज किया जाता है. द मेन डिफरेंस इज कॉल्ड द फोकस ब्रीथिंग, लेंस ब्रीथिंग कहते हैं उसे. Have you ever feel that in auto focus और manual focus जो भी auto भी use कर रही थी, you feel that कि जैसे ही तुम focus shift करते हुए, shifting the focus, you feel the breathing, you feel that your frame is little bit zoom in or zoom out. ये feel होता है? Yes, In sir. terms of DSLR, Yes, you sir. feel that in, but have you ever noticed in film कि focus shift हो रहा है, rack focus हो रहा है, you feel that is the zoom in or zoom out? You never feel that? No. वो फील No, नहीं होता. never. इट्स कॉल्ड द लेंस ब्रीथिंग. ये लेंस की प्रॉब्लम है. और एवरी DSLR लेंसेज जो फोटोग्राफिक लेंसेज है तुम्हारे, उसमें ब्रीथिंग है, बट सिनेमा कैमरा के लेंसेज में ब्रीथिंग मिनिमाइज किया हुआ है. मिनिमाइज तुम्हें पता नहीं चलेगा. इफ यू सीन द रैक फोकस, किसी फिल्म का देख लो, तुम्हें फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, फ्रेम चेंज नहीं दिखेगा. बट इन DSLR इफ यू आर यूजिंग समथिंग 7200, बहुत लॉन्ग टेलीफोटो यूज कर रहे हो, तुम्हें लगेगा यू जस्ट मेक इट जूम इन और जूम आउट. बहुत क्लोज फ्रेम ले रहे हो, यू फील दैट यू जूम इन और जूम आउट. वाइड में पता नहीं चलेगा, बिकॉज वाइड में ऑलरेडी देयर इज अ ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड, तो फोकस शिफ्ट हुआ वैसे भी पता नहीं चला. सो इफ यू वांट टू नोटिस इट, इफ यू आर यूजिंग अ टेलीफोटो लेंसेज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एबल टू सी दैट हाउ मच ब्रीथिंग इज देयर, है ना, कि कितना ज्यादा ब्रीथिंग है इसमें. बट इन सिनेमा कैमरा तुम चाहे टेली यूज करो, कुछ भी यूज करो, यू कैन डू द रैक फोकस, बट उसमें क्या होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा. सो वन प्रॉब्लम विद द DSLR lenses is your lens breathing. Another problem is the lens ramping. Most of the DSLR camera देखोगे lens ramping के साथ आता है. It's called a lens ramping. ये 3.5 become the 5.6, right? हो जाता है ना. But the cinema camera have the always the fixed aperture will be there.
जो उसकी ओपनिंग है वही रहेगी, तुम इसमें जूम करो या कुछ भी करो, ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट द मोस्ट ऑफ द DSLR, जो किट लेंसेज की बात बता रहा हूँ, कि उसके लेंसेज के साथ ये प्रॉब्लम होती है। द third things is, in your camera, sorry, in DSLR or photographic lenses, there's autofocus. In cinema lenses, there's no autofocus at all. कोई autofocus नहीं होता उसमें. You have to perform it manually. तुम्हें manually perform करना पड़ेगा. Third things, जो focusing ring होता है, focusing ring जो आपका है, जो आपके DSLR करेंगे, इट्स वेरी डिफरेंट। वो उसका जो कैलिब्रेशन है काफी एक्यूरेट होता है, एंड ऑपरेशन जो है काफी स्मूथली होता है। तुम्हारे कैमरे का, तुम्हारे लेंसेज का ऑपरेशन उतने ही, तुम क्लियरली कई बार देखोगे, इफ यू आर यूजिंग दो रिंग्स, वो रिंग इतना कैलिब्रेशन में नहीं चलता है। तुम सर्टेन पॉइंट पे लेके जाओ, लगेगा छोड़ दिया है। We feel many times now, if you are using a lens like a 1 year 2 year lens use कर रहे हो, you're using the manual focus, you feel that वो grip ढीला हो गया है ना। तो exactly वहां पर certain point पे नहीं पहुंचता, इसकी gripping काफी अच्छी होती है। So that's the reason एक focus में भी इसका difference है in terms of cinema camera, if you compare it to the photographic lenses जो आपके हैं। One more thing, in your cinema lenses have the T-stop, that's called the true stop, and your camera have the f-stop. There's nothing, it's the same things, T-stop and f-stop. F-stop आपको बताता है how much area is open, T-stop आपको बताता है what is the intensity of it. Both are same things, कि खिड़की खोलोगे तो लाइट आएगी, खिड़की इतनी खुली तो कितनी लाइट आई, ये T-stop बता रहा है। खिड़की कितनी खुली, ये f-stop बता रहा है। वो ओपनिंग बता रहा है, वो इसकी इंटेंसिटी बता रहा है। That's the reason it's the true stop. So it's So can we Yeah. say that in some cine lenses, f-stop and t-stop both are calibrated, but DSLR? No, DSLR, no, calibration is done thing. वो उसी हिसाब से देखो क्या होता है। If you are talking about like the kit lenses like 3.5, there is no aperture like 3.5 है। 3.5 का कोई combination, if you started with the 1, जो aperture का हम in terms of intensity और numbers हम बात करते हैं, it started from 1, 1.4 to 2.8. Is there any 3.5? 3.5 है कहीं पर? नहीं sir. नहीं है ना, 3.5 नहीं है। So it's you know the tendency, if you, because you know एक rule है कि जो भी aperture f4 से जो भी lenses start होते हैं, it will consider in the slow lenses, उसको हम slow lenses कहते हैं। fast lens कौन सा था, जो 4 से नीचे होता है, it must be the 2.8. So वो 2.8 कह नहीं सकता है, उससे उतनी intensity तो वो दे नहीं रहा है। So it's you know there's a marketing region, वो 3.5 कह दिया है, but it's the 4. Basically it's 4, it's not the 3.5. तुम consider करोगे, it will be the 4 है ना, वो 3.5 नहीं है, but for the marketing reason they did the 3.5. but थोड़ा सा difference होता है in terms of, but we measure it on the f-stop, जो हम बात करते हैं वो f-stop पे ही बात करते हैं, but that is calibrated on T-stop, और f-stop में बहुत फर्क होता नहीं है। वो true stop है because वो intensity बताता है, ये आपको opening बताता है उसकी, but ज्यादा difference, sorry सर जो सिनेमा लेंसेज होते हैं तो उनमें वो फुल स्टॉप का डिफरेंस ही होता है क्या सर? 1.4 पे 2 1.4 and 2 मतलब आई मीन पूरा फुल स्टॉप ही होता है। 1.42 या फुल स्टॉप, बिल्कुल ऑब्वियसली यार, 1 स्टॉप का डिफरेंस होगा। जो भी है 1 स्टॉप डिफरेंस है। ये जो भी आप नंबर्स देख रहे हो ना, चाहे 1 1.4, इट मींस 1 स्टॉप, 2 1 स्टॉप, 2.4 जो है आपको 1 स्टॉप ही जा रहा है ना। वो तो अभी आपको सॉरी नॉब अभी हुआ क्या है कि अभी डिजिटल में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, यू कैन कंसीडर द 3 स्टॉप, राइट, कि मतलब 1 स्टॉप पहुंचने के लिए तुम क्वार्टर करके 3 पे जाओ, राइट, दे रखा है ना तुम्हें। यस सर। Yes, इंटरम sir. शटर वो उसमें देखते हो तुम अपने आईएसओ में जाओ, डीएसएलआर उसमें भी दे रखा है ना, ये सर सीधा वो आईएसओ 100 से 200 नहीं पहुंचता है, इवन ये उनके अंदर भी सेटिंग्स हैं। वो जो जस्ट लाइक ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जब तुम करते हो, दे आस्क फॉर द सेटिंग्स, क्या रखना चाहते हो, 2 और 3, मतलब एक से डबल पहुंचे, एक ही बार में पहुंच जाए, या 2 बार में पहुंचे, या 3 बार में पहुंचे, लाइक 100 बिकम 150, 150 देन 200 नहीं पहुंचेगा, 180 देन 200, और अदर 150 और 200। वो ऑप्शन तो डीएसएलआर आ गया, दे कैन मैनिपुलेट इट, वो तो दिया हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हम वही चेक करेंगे, है ना, कि हाफ एंड डबल, ऑलवेज इट विल रिमेन सेम, इट विल बी हाफ और डबल। थैंक यू सर, थैंक यू। सो इट्स हेलो 7:30। हाँ बोलिए।
सर किसी कैमरे का लेंस का अपर्चर 1 भी है क्या? 1 अभी तक आया नहीं है ना, कुछ लेंसेज कंप्लेन करते हैं, बट 1.4 वी डिसाइडेड, बट 1 से स्टार्ट है। कुछ लेंसेज हैं जो 1 है, बट नॉर्मली अभी तक जो यूज करते हैं स्टार्टेड फ्रॉम द 1.4, बट कंसीडर किया गया 1 से। जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टेड फ्रॉम द 1, जो हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं ना। This is the right 5 points for photographing people under a very strong sun. Very strong sun, it means clear that the strong sun जैसे ही ये add on कर रहे हैं, it means there is a no cloud at all, right? और strong sun में कोई भी टाइम उठा सकते हैं, कब होता है सब strong? It means there will be the hard shadows, the first things. नून में। या तो हम अगर अब यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे, we started with the direction, कि डायरेक्शन क्या होगा लाइट का। You can started from there कि किस डायरेक्शन क्या होगा, then we discuss on the quality की क्वालिटी कैसी होगी। It will be hard, right? Shadows will be harder in the direct sunlight की अगर बात करोगे तो you have to use your shadows very creatively. ये shadow को minimize नहीं कर सकते because there is a no the diffuser at all, कोई cloud नहीं है जो कि light diffuse हो रही है। So hard sunlight is coming, though the first things is for shooting in daylight is you are just worrying about your exposure, right? Once yeah. So suppose you are shooting a portrait in outdoor, right? The first things that you will consider is your exposure. So fix your exposure, the things that you will consider, you have to shoot in manual mode. Manual mode में ही shoot करोगे the first things, because अगर aperture priority में करते हो, shutter priority में करते हो, it's difficult. वो अपने according चीजें set करेंगे. So manual, you have the fully control on it, कि पूरा control तुम्हारे exposure का तुम्हारे पास है. The another things, you can say that how will use the metering mode. So अगर तुम्हारे कैमरे में मीटरिंग, अब हर कैमरे में मीटरिंग मोड होता है, बिफोर दैट जब नहीं था तो देयर इज अ मीटरिंग मोड कॉल्ड द सनी 16। यू कैन अप्लाई द रूल ऑफ सनी 16 इफ बिकॉज यहाँ तुम ये लाइन लिख सकते हो, द रीजन इज दे आर आस्किंग अंडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन, और सनी 16 जो यूज किया गया था, सनी 16 मीटरिंग मोड जो बनाया गया था, वो बेसिकली इसी टाइम के लिए बनाया गया था, विदाउट एनी क्लाउड, with there's a sun is very clear sunny day, clear sunny day में कहते हैं, clear sunny day में sunny 16 rule जो है वो अप्लाई किया गया था, बनाया गया था, और यूनिवर्सल रूल है फॉर द डे लाइट, कि डे लाइट में अगर आप शूट कर रहे हो तो सनी 16 इज अ परफेक्ट रूल। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, अभी तो आपके पास ऑप्शंस हैं इन कैमरास, different kind of light meter that your camera have, the refractive light meters, different options हैं आपके कैमरे में। अगर वो नहीं है तो क्या करोगे? So there is a Sunny 16 metering mode. You can add on this one. कि Sunny 16 में क्या होता था? Your aperture must be the f16. कि aperture तुम्हारा f16 होता था, and whatever the your film speed, because negatives use होते थे, तो suppose you are using the film speed is 100 ASA. So whatever your film speed is, your shutter speed must be awarded. है ना? Like you are using 100 ASA, तुम्हारा shutter speed जो है वो 100 होगा. If you are using the 200 ASA, तुम्हारा shutter speed 200 ASA होगा, and you will get the perfect mid-gray images. It will not the overexposed, it will not the underexposed. In zone 5 your image will be. है ना? जो भी image है तुम्हारा वो zone 5 में होता, if you are applying the Sunny 16 metering mode, right? एक Sunny 16 भी तुम इसमें एक पॉइंट डाल सकते हो. You will just go with the Sunny 16 metering mode if you every time you are not holding your light meter to judge the exposure. So there's a clear sunny day, you can apply the rule of Sunny 16 metering. So एक point तुम या तो Sunny 16 दे दो, और another is कि the another point that if you are shooting a portrait, right? तो सबने use किया होगा metering mode. In your camera have the evaluative metering mode and spot metering mode.
So which metering mode preferably I will choose? I'll go with, if I'm shooting the portrait, I'll worrying about the texture of my models or exposure for my models, not for the background. Background may be burn kar sakta hai. So I'll go with the the texture of our character or portrait के लिए. तो कौन सा metering mode use करूंगा? If I will use the evaluative metering mode or matrix, वो पूरे एरिया का बता देगा, राइट? तो उसमें क्या होगा, स्काई भी है, बैकग्राउंड में और भी लाइटें हैं, सनलाइट्स भी है. सो क्या हो रहा है कि सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है. इट मे बी योर कैरेक्टर स्टार्ट बर्निंग. आप अगर इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड लेते हो तो बेस्ट वे इज टू यूज स्पॉट मीटरिंग मोड. अगर आप सनी 16 अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वन मीटरिंग मोड यू हैव टू राइट ओवर हियर. मीटरिंग मोड के बारे में जरूर लिखना. आइदर द आप सनी 16 लिख लो, और अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो जस्ट गो विद द स्पॉट मीटरिंग. स्पॉट मीटरिंग से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो मिड ग्रे में है या नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर मैं बात कर रहा हूँ अभी. तो जस्ट यूज योर कैमरा इन मैनुअल मोड एंड अनदर थिंग से यूज द स्पॉट मीटरिंग मोड, है ना. और ट्राई टू यूज योर व्यू फाइंडर. अगर एलसीडी यूज कर रहे हो तो जस्ट ट्राई टू कवर इट सम ब्लैक क्लॉथ और समथिंग जिससे डिस्प्ले आपको क्लियरली दिखाई दे, है ना. और अदर यू आर शूटिंग आउटडोर, कम से कम क्या कहते हैं, आपका जो ये होता है डिस्प्ले होता है, इफ यू आर यूजिंग योर कैमरा डिस्प्ले नहीं बता पाएगा आउटडोर में. इफ यू हैव द मॉनिटर एंड समथिंग एल्स, तो उसका जो रेशियो है CDM स्क्वायर देखते हो अगर आप लोग, कैंडेला मेजरमेंट जो होता है, आप अगर डिस्प्ले टीवी खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, होता है CDM स्क्वायर लिखा होता है. अगर आप ब्राइटनेस रेंज लिखा होता है, आप टेलीविजन खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो ना, उसमें लिखा होता है. तो सपोज यू आर शूटिंग ऑन आउटडोर और यू हैव अ मॉनिटर, एटलीस्ट मॉनिटर का जो रेफरेंस हो 1:1000 का होना चाहिए, 1000 CDM स्क्वायर होना चाहिए उसका, अगर आप आउटडोर यूज कर रहे हो टू चेक द परफेक्ट एक्सपोजर. बिकॉज सनलाइट में ब्राइट सनलाइट भी आ रही है आपके डिस्प्ले के ऊपर, यू आर नॉट एबल टू सी इट. जैसे तुम अपने फोन का नहीं देख पाते हो, फोन को देखते हो ब्राइट सनलाइट में दिख पाता है फोन का डिस्प्ले? नहीं दिखता ना, यू हैव टू कवर इट अप. तो जब आउटडोर शूट करे तो मॉनिटर कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 1000 के अकॉर्डिंग कुछ कैंडेला उसका मेजरमेंट होना चाहिए, है ना. The first things with the the hard sunlight is you can use a lens flare creatively. यूज कर सकते हैं लेंस फ्लेयर का, राइट? सर कैंडेला एंड निट्स आर सेम थिंग? नो नो नो, दोनों में डिफरेंस होता है. कैंडेला एंड निट्स, दोनों का मेजरमेंट में डिफरेंस है. मतलब जो उसका अंडर रूट 3 का अंडर रूट निकालते हैं निकाल के उससे निकाल लोगे. ये 500 नेट इक्वल टू 7 समथिंग कुछ वो होता है, कैंडेला होता है. बट बेसिकली हम नेट पे ही चलते हैं. हमारा अगर 500 नेट जो मॉनिटर है हमारा ना, अगर वो 500 नेट है या तुम्हारा मोर देन 500 है तो यू कैन यूज इन आउटडोर. जो हमारा नॉर्मल ये लैपटॉप होता है, लैपटॉप है 300 नेट ओनली. तो लैपटॉप भी बाहर धूप में लगा तो यू आर नॉट एबल टू सी इट, कुछ नहीं दिखेगा लैपटॉप पे भी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मस्ट बी द 1000, राइट? 1000 होना चाहिए इफ यू आर यूजिंग आउटडोर. Okay, so now the angle of sun क्या होना चाहिए? It will be, your character will look through the sun. सीधा sun की तरफ ही देखेगा तुम्हारा character अगर, तो क्या होगा? What happened? The start not the burning. The one more thing, your model will feel uncomfortable direct to sunlight में अगर देख रहा है, होगा ना? Burn को चलो तुम कह रहे हो मैं exposure से ठीक कर लूंगा, but it will cast a hard shadows also. बहुत hard shadows तुम्हारे character पे जाएगा. So काफी unnatural सा फील होता है, आंख में लाइट जो जाती है, so it's feel uncomfortable, है ना. For that reason you just choose the angle for your character. Angle कैसे choose करोगे कि because there's a sunlight, there's a hard light, so you can use sun as a backlight. जो sunlight है उसे आप backlight की तरह use करो, so you feel there's a rim light और, है ना, on whole areas. तुम्हारे character पे जो backlight बन रहा है kind of rim बन सकता है, और if you change the angle वो किकर भी बन सकता है, और that you can use it like the side light. So क्या होगा? Against the sun, your character is against the sun. So what happened? Hard light तो इधर छुप गई, hard light क्या हुआ? किकर बन गया और इस साइड आ गए. अब फ्रंट पे क्या कौन सी लाइट आ रही है? वेरी सॉफ्ट लाइट इज कमिंग. सॉफ्ट लाइट कौन सी हो गई? आइदर जहां तुम यूज करो सरफेस ऐसा है जहां से लाइट बाउंस हो रही है, एम्बियंस की लाइट बाउंस होके आ रही है, एंड समटाइम्स वी यूज अ रिफ्लेक्टर. सो यू कैन ऐड ऑन, यू कैन यूज अ रिफ्लेक्टर, समटाइम्स वी कैन यूज अ फ्लैश, है ना, कि सामने से थोड़ा सा फिल देने के लिए, बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट शैडोज टू क्रिएट दोस एरियाज, वी यूज अ
thermocol or something is to bouncing back कि थोड़ा सा element bounce का मिल जाए, because direct hard sunlight में होगा बहुत hard patch बनेगा. So you can use a sunlight as in backlight. So you can use what the angle of the sun means. You can use sunlight as in backlight. Front के लिए क्या कर सकते हो? You can use a fill और ambience की जो light है वो तुम्हारे character के लिए वो हो रही है. तो it could be the side light or it could be the backlight. So it's totally depend up to you which kind of position or which kind of angle you want. The first thing is your mode. Second one will be your angle to the sun. The spot metering that I have already discussed. अब क्या करें? Creative use of shadows. So क्या shadows का use कैसे कर सकते हो? Because in daylight there's a less contrast, right? Daylight में shoot करो hard sunlight, it means there's a no contrast at all. Contrast बहुत कम होता है, काफी affinity वाले scene होते हैं, right? So contrast कैसे create कर सकते हैं? Contrast एक ही चीज से create हो सकता है, that is your shadows. जब तक shadows नहीं, highlights and shadows होंगे तभी contrast create होगा. और shadows तुम कहोगे कि वहां कहाँ से आ जाएगा shadows? Very difficult ना? जो shadows हैं वो तो काफी ऐसा नहीं कहीं पर है तुम shadows create करोगे तो पूरा का पूरा overall सारा का सारा diffuse होगा. तो how you create the shadows? So we use certain kind of pattern like that the light is falling from the leaf. तुमने leaf का use किया. You guys have seen ना those films. Rashomon देखी है ना सबने? Rashomon देखी है सबने ना? हाँ सर Yes, देखा. sir. देखिए how they use the shadows ना, कैसे use किया shadows का? The shadows of leaf, shadows of trees. समय कभी flat लगा है तुम्हें पूरे moment में? जो starting का वो wood cutter का scene है, कभी देखा है कि वो बिल्कुल flat लगा? It's the daylight, complete daylight it is, but how creatively they use those shadows ना? कितना interesting लगा है? Yes sir. कि face पे shadows आ रहे हैं या ऐसे आ रहा है. So try to use the shadows. देखो कि portrait में जब daylight में हम shoot करते हैं, sometimes they holding the umbrellas and half of the umbrella will making shadows on your face. कि half of the areas will be diffused, there will be half of the area there will be light. So key fill का ratio भी बनता है और other the pattern on your face. तो shadows को कैसे creatively use कर सकते हो कि windows का कोई pattern है या ऐसा कुछ भी pattern है, तो वो जो उसके अंदर या कार के अंदर आपने अपने कैरेक्टर को बिठाया है, सो बैकलाइट इज कमिंग, सामने की लाइट से थोड़ा सा कट करके दिया तो फेस पे कोई पैच सा बन रहा है, कोई पैच सा आ रहा है फेस के ऊपर, अदर द बैकग्राउंड पे शो क्या हो रहा है, ये हाइलाइट्स एंड शैडोज बन रहे हैं. सो अगर आप इसको शेड्स में ले जाके या ट्री के लीफ हैं उससे कहीं ना कहीं आप इट मींस शैडोज मींस यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट जैसे ही क्रिएट होगा वो इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज द डे लाइट का जो सिचुएशन दिया हुआ इट मींस इट्स टोटली डोंट गो विद इट कि डे लाइट में जो है बिल्कुल फ्लैट होता है तो हम कर क्या सकते हैं, राइट? डे लाइट को भी आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, है ना? इन टर्म्स ऑफ शेड्स कहीं होगा, either the some properties will be there जिससे कि क्रिएट हो सकता है. I've seen the many fashion photography जो डे लाइट में करते हैं, how they use shadows creatively, है ना? वो अम्ब्रेला को यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जिससे जो है अदर बहुत सारे उसमें देखोगे दे यूज द नेट और द पैटर्न ऑफ नेट ऑन हाफ ऑफ द फेस, इसमें आए दिख रहा होता है, फेस पे पैटर्न होता है. अदर दो जो हैट होते हैं, हैट को काफी अच्छे से यूज करते हैं, है ना? हैट को देखा ना, हैट को कितने अच्छे हार्ड शैडोज बनते हैं हैट से. सो हाउ दे यूज शैडोज क्रिएटिवली. तो जो भी शैडोज आप क्रिएट कर रहे हो उसको क्रिएटिवली आप यूज कर सकते हो. either you can make a pattern, either you have a pattern you can use it, or either try to make pattern through the properties, or either जो भी ambience में आपके पास वहां है, either the leaf हो सकता है किसी चीज से, you just create a pattern. So that's the shadows. कि shadows highlight बनेंगे वो interesting लगेगा. So that's a third point. Because day में shoot कर रहे there's nothing to कि कंट्रोल द लाइट्स. आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कटर पीस है, ब्लैक क्लॉथ है, सो यू डिफ्यूज इट एंड मेक द की एंड फिल. तो जो भी अवेलेबल लाइट्स हैं उसको कैसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हो. Okay, you can use the filters, any kind of filters जो लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस करे. सपोज इंटेंसिटी कौन से फिल्टर रिड्यूस करता है? न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, राइट? पोलराइजर,
Polarized filters के दो काम है. So polarizing the light also, it will also reduce the glare. Glare. One more filter that is there. This is called the black promise filter. If I'm supposed to shoot like the portrait, so it's all about the texture of your character or your model, right? तो डे में जब करते हो तब आप देखते हो एक काइंड ऑफ the softness on your face must be there. जब मॉडल को शूट करो there must be the softness. कि सपोज कि तुम्हारा मॉडल मेकअप पे नहीं है, बिकॉज डे में मेकअप करोगे तो जल्द पसीने आएंगे और खत्म हो जाएगा. इट मींस वो सारी चीजें नहीं है, बहुत मेकअप नहीं है, राइट? डे में इतना मेकअप आप नहीं करवा सकते हो. जैसे सनलाइट आएगी वो सारा चीज धुल जाएगा. सो फॉर दैट रीजन फेस पे क्या होता है, एक सर्टेन टेक्सचर्ड होते हैं जो क्लीन नहीं होते हैं, राइट? जब आप अपने कैमरे से क्लिक करते फील दैट कि फेस इवन सा नहीं लग रहा है. तो टू मेक दोज थिंग इवन देयर इज अ फिल्टर कॉल्ड द प्रोमिस्ट फिल्टर, and with that there's a black promist filter. Black promist is the ND plus promist. वो एक there is a little bit mistiness on your face. वो थोड़ा सा mistiness add on करता है. So preferably I can also use a black promist filter instead of ND. वो ND1 होता है plus promist होता है. So light भी diffuse कर रहा है और आपका थोड़ा सा softness भी दे रहा है. So you can use black promist as well as you can use polarized filter. Polarized में इसलिए use कर सकते हो, suppose your model is against the car or something else खड़ा है तो कार पे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस बन सकते हैं टू कट दोस ग्लेयर्स, या वाटरफॉल के सामने खड़ा है कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, उसके ग्लासेस पे कुछ रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं, आइदर ही इज होल्डिंग समथिंग, कुछ होल्ड कर रहा है जिस पे रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं, ग्लेयर बन रहे हैं. सो यू कैन यूज पोलराइज्ड फिल्टर एज वेल एज देयर इज अ स्काई इन बैकग्राउंड. तो स्काई के कलर्स को थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर्स एड ऑन करने के लिए यू कैन यूज अ पोलराइज्ड फिल्टर. अगर स्काई भी आपके कैरेक्टर में आपके फ्रेम में है तो यू कैन यूज अ पोलराइज्ड फिल्टर. अगर सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है, यू कैन यूज एंडी फिल्टर्स. इफ यू वांट अ लिटिल बिट मिस्टीनेस इन योर फ्रेम, यू कैन यूज अ प्रोमिस्ट फिल्टर्स. तो फिल्टर्स ऐसा नहीं कि हम सारे फिल्टर्स कहेंगे यूज करेंगे. व्हाई यू आर चूजिंग दिस फिल्टर्स, मेक अ सिचुएशंस ओवर इट. मैंने आपको तीनों चीज बता दी. जस्ट मेक अ सिचुएशंस की आई एम शूटिंग अ मॉडल, राइट? सो देयर इज नो मेकअप एट ऑल, सो दैट्स द रीजन आई चूज अ ब्लैक प्रोमिस्ट फिल्टर्स. So क्या होगा, there is a little bit softness on his face, वो face पे आ जाएगा. You can use a polarized filter because there is a sky, so काफी वो लग रहा है तो kind of saturation I want, there's a little bit detail of your sky. So that's the reason I will choose a polarized filter. Only I'll try to shoot on lower aperture like f2.8 or 1.8. I just want to shallow the depth of field, so that's the reason there is a lots of light is coming. So that's the reason I will choose ND6 or ND9, है ना? सो तीनों सिचुएशंस आपको देने होंगे कि भाई यू आर चूजिंग. मैंने तीनों बताया है पर तीनों लिखना नहीं है. यू जस्ट मेक अ सिचुएशंस एंड देन राइट इट, है ना? कि आपने अगर सिर्फ एनडी यूज करना, व्हाई वी आर यूजिंग एनडीज, अगर आप पढ़े होगे तो एनडी या तो हम स्लो शटर यूज करते हैं आउटडोर में, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग, और अदर हम सॉरी you need a shallow depth of field in outdoor, then we are using. So just create a situations, है ना, कि because model को आप shoot कर रहे हो, you need a shallow depth of field. That's the reason you are choosing ND3 और ND6 जो भी है वो options आप दे सकते हो. सर अभी रिसेंटली नरेश सर पोलराइजर के बारे में बता रहे थे, तो ही सेइंग कि लाइक कि जो पोलराइजर है सिर्फ वो ग्लास के ऊपर ही काम करता है, मेटल के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन या शिमर आ रहा है तो वो नहीं कट करता. वो क्या करता है, मतलब ग्लास के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आता है मेनली वही हाँ, कट. बिकॉज ग्लास का जो रिफ्लेक्शन, ग्लास एक एंगल दे रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक एंगल दे रहा है ना. ग्लास वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लास से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट्स अ ग्लेयर. सब मेटल से भी तो होगी वो. बहुत रिफ्लेक्ट नहीं होती. मेटल पे अरे क्या होता है, मेटल सर पे पोलराइज रिफ्लेक्शन ही बन नहीं जाता है. करता है. मेटल क्या होता है, मेटल पे रिफ्लेक्शन बन जाता है. मेटल पे सर कभी देखा है, कार पे या किसी चीज पे देखा है आपने? सर ना? मेटल तो लाइट पोलराइज ही नहीं करती है, तो पोलराइजर फिल्टर काम कैसे करेगा? तो पोलराइजर डिफरेंट थिंग ना, बट पोलराइजेशन इज नहीं, गिविंग डायरेक्शन टू द जब लाइट तक ना. नो नो हाँ, नो वन डायरेक्शन तो वो तो मेटल नहीं करता है, वो ग्लास करता है, वाटर करता है. नहीं, जैसे जैसे जो कांच के ऊपर जो देखा है, ग्लास के विंडशील्ड के ऊपर एक पैच बन जाता है लाइट का ना, विंडशील्ड वो का पैच पोलराइजर बनता कट है. डाउन कर देता है. हाँ बिल्कुल, बट वहीं अगर आपके इस मेटल पे बन रहा है उसको कैसे करेगा? बिकॉज वो जो है वो रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जॉर्व कर लेता है वो बेसिकली. तो मेटल पे क्या बनता है, मेटल पे हम रिफ्लेक्शन बनाते हैं. मेटल पे जब बनाते हो आप रिफ्लेक्शन बनाते हो, है ना? मेटल से लाइट, अभी ग्लास पे जब लाइट पड़ेगी तभी तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जा रही है ना.
किसी भी चीज पे आप लाइट दोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। ये मेटल है, इस पे आप लाइट दो, डायरेक्शन जा रहा है क्या इसका? ये फोन नहीं। मेटल है, इस पे लाइट दो, डायरेक्शन मिलेगी इसको क्या कोई? नो। इट्स प्रोड्यूस अ ग्लेयर, राइट? ग्लेयर वर्ड दे सकते हो, ग्लेयर हुआ ना, बट उस ग्लेयर को कोई डायरेक्शन तो नहीं मिला ना। जब डायरेक्शन मिलेगा तब तो उसे पोलराइज करेंगे ना हम, चाहे वो लिनियर करें या सर्कुलर करें। मतलब ये बहुत ज्यादा स्कैटर कर देता है, बहुत ज्यादा। बहुत स्कैटर्ड है ना। ग्लेयर इज अ सिंपल थिंग, ग्लेयर इज एन अनफॉर्मिंग इमेज, इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे ग्लास पे तो इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, बट ग्लास डायरेक्शन दे रहा है ना, जो कि एक ही जगह नहीं जा रहा है। तो अनपोलराइज्ड है, अब पोलराइज फिल्टर उसको पोलराइज कर देगा टू गिव द सर्टेन डायरेक्शन। ये तो जा ही नहीं, इतना स्कैटर्ड है, यहाँ पर जा ही नहीं रहा है ना, जब मेटल पोलर नहीं करता है। सो दैट्स द रीजन मेटल पे जो है काम नहीं करेगा। सो इन द ग्लास वाटर इस पे जो है ये काम करता है ना। सो इसलिए सर और एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। जैसे पोलराइजर फिल्टर 90 डिग्री पे सबसे अच्छा काम करता है, तो अगर सन ओवरहेड रहा तो पोलराइजर फिल्टर लगा के कैसे करेंगे? जब सन ओवरहेड, आपका डायरेक्शन डिपेंड करेगा ना, आपका डायरेक्शन, आपका ग्लेयर किस एंगल पे बन रहा है। ओवरहेड है सपोज करो, मान लो सपोज करो ओवरहेड है, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा ना, कि ग्लेयर किस एंगल पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है ग्लेयर। आप डायरेक्ट अगेंस्ट द वो सन देख रहे हो, आप आपके स्पेक्स पे बन रहा है, और आइदर यू आर होल्डिंग समथिंग ओवर हियर, इस पे बन रहा है। एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री पे काम कब करता है वो, ना 90 डिग्री पे सबसे अच्छे से। 90 डिग्री किसका एंगल? जो पोलराइज्ड हो रहा है उसका ना, जो लाइट अनपोलराइज्ड है उससे एंगल ना। मतलब अपन को फाइंड करना होता है ना कि फाइंड बेस्ट करना ये होगा एंगल होगा। आपके लिए। 90 एंगल कौन सा बनेगा, कहाँ बन रहा है, उसको आप 90 फाइंड करोगे ना। सन के एंगल से क्या मतलब है? जब आपका यहाँ पर बन गया उसका आप 90 कह रहे हो ना, उसी का 90 बनेगा ना। वहां पर जब 90 पे लेके जाओगे तो परफेक्टली जो है वो मूव हो जाएगा। परफेक्टली नहीं होता, थोड़ा सा बच ही जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक फिल्म थी, शायद आप लोग देखे, नाइफ इन द वाटर ना, नाइफ इन द वाटर इज द फिल्म। यस सर। उसमें बहुत अच्छे से यूज किया, द रोटेशन ऑफ द फिल्टर वेरी वेल दे यूज्ड। सर इट्स अ हिट एंड ट्राई मेथड ना, यू जस्ट ऑब्वियसली ट्राई। या ये इसका परफेक्टली आप नहीं कह सकते व्हाट शुड बी द एंगल, राइट? वो देखो एक दिया हुआ 90 डिग्री, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज इट कि सबसे बेस्ट आउटपुट आता है, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू नो द एंगल, सिचुएशंस, द कैमरा एंगल, राइट? ये उसी पे डिपेंड करता है। जब आप लोकेशन पे होते हैं तभी आपको पता चल पाता है। बट यू नो द फॉर द डिस्कशन वी कैन यूज इट कि हाँ पोलराइज यूज करेंगे तो पोलराइज का एक पता है हमें टू गिव द सर्टेन यू नो द कलर्स इन स्काई, स्काई में कलर आ जाता है। बट व्हाई वी यूज द पोलराइज, द रीजन आप बैकग्राउंड लेना चाह रहे हो, दैट्स द रीजन व्हाई यूज द एनडी। आप सिर्फ लाइट डिफ्यूज करना चाह रहे हो बिकॉज यू वांट स्लो शटर स्पीड, द मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ अपर्चर यू वांट द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। सपोज तुम्हें वाटरफॉल दिखाना है, कुछ उसका दिखाना है, तो you need a slower shutter speed, so you use the ND filters. Pro mist because I want the mistiness on the face, that's why I use it. So जो भी आप यूज करोगे ना उसके रीजंस बता दो why you are using it, है ना? ओके अब मान लो एक सिचुएशंस मैंने इसमें इसलिए ये दे दिया है कि फ्रंट लाइटिंग भी मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैंने बताया नहीं यूज कर सकता, बट एक दे देता हूँ, अगर तुम मैं ये बोलो कि मैं फ्रंट लाइटिंग यूज करना चाहता हूँ, यू कैन यूज इट। फ्रंट लाइटिंग से क्या होता है? Have you ever feel that the sunlight जब front light बनती है, the harsh light is falling on your face? Yes sir. So जब ऐसा है ना, कुछ एनर्जी या कुछ ऐसा दिखाना हो, so it means जब harsh light आ रही हो ना, your character is moving, you know, direct light is facing, the front light is facing. At that point of time ना, character को static मत रखो। तुम्हारा character, your character must be in movement, right? कुछ भी मूवमेंट में कुछ भी कर रहा है, सो ये जो चीजें है ना, एनर्जी थोड़ी सी दिखाती हैं काइंड ऑफ। अगर फ्रंट लाइटिंग में भी कर रहे हो, अदर यूज सम प्रॉपर्टीज, द सन ग्लासेस और समथिंग एल्स यूज करते हैं ना, है ना? तो ऐसे प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ पोजेस वाले ना हो, और काइंड ऑफ सर्टेन मोमेंट इज देयर कि कुछ काम कर रहा हो, कुछ हो रहा हो ऐसा, सो इज अ काइंड ऑफ एनर्जी इज शोइंग। तो फ्रंट लाइट हम तब भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर पोज देने के लिए नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा हो, देन दैट टाइम यू कैन यूज इट फ्रंट लाइटिंग। और आइदर यू आर यूजिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज,
या तुम प्रॉपर्टीज थ्रू फेस पे शैडोज दिखा रहे हो, सम यू नो द एस्थेटिकली यू आर यूजिंग समथिंग, कि कोई ऐसे प्रॉप्स हैं या कुछ ऐसा यूज कर रहे हो, तो तुम फ्रंट लाइट दिखा सकते हो। सॉरी, ओके एक और क्वेश्चन था यहाँ, मैंने एनडी आपसे डिस्कस कर ही लिया है, तो एक और मैं बता देता हूँ। आई थिंक 2018 और 19 का कोई क्वेश्चन था ना, explain the 3 situations where you can use ND filters. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कोई 3 सिचुएशंस एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि आप सो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ ही कर देता हूँ, बिकॉज ये वी आर टॉकिंग अबाउट द एनडी फिल्टर्स ना। सो सिचुएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ मैं एनडी फिल्टर यूज करूँ। यस सर। या तो ये लिख सकते हैं 3 सिचुएशंस, कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ जरूरी नहीं है आउटडोर हो, इंडोर भी हो सकता है। यस सर। सपोज फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्जांपल ऐसे इन ब्रीफ कर देता हूँ। आई हैव द पीपीटी, बट अब जब तक यहाँ लाऊंगा मुझे, for example, suppose you are shooting outdoor, right? So one second, just hold a second. Oh. If you want to shoot a waterfall, right, in slow shutter speed, right, in outdoor now, what you're gonna use, because there's a outdoor, there's a bright sunny day, so it's difficult to capture those things, overexpose ho jaoge, so at that point of time you can use ND filter. दूसरा तुम ये कह सकते हो, recently we discussed, कि if you want to shoot a shallow depth of field, in shallow depth of field तुम क्या करोगे use, तुम 1/4 जो है use sorry 1.4 shutter speed use, sorry aperture use करोगे, and you can say that कि अब तो इसका क्या काम है, क्या कहते हैं, तुम्हें because तुम portrait shoot कर रहे हो, तो aperture भले तुमने 1.4 खोल लिया है, it means तुम shutter speed से compensate कर सकते हो ना। स्टिल इमेज है ना, यू आर शूटिंग स्टिल इमेज, कंपनसेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना। यस यस तो सपोज वी आर शूटिंग ऑन, आप किसी 85 mm पे शूट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग शटर स्पीड 1/100, इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम, 200, 400, 800, 16, 32, 64, और कितना, 4000, ऑल द वे टू 4000। फिर भी कितना स्टेप होता है, 32, 7 स्टेप ना, 7 स्टॉप, राइट, 7 स्टॉप हुआ ना। यस 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 7 स्टॉप हुआ, मान लो तुम्हारा रेंज जो है वो 10 स्टॉप का है, तो तुम्हारा कैमरे का रेंज इतना है ही नहीं, 7 स्टॉप तक गए, तुम वहीं रुक गए, तुम्हारे कैमरे का उतना रेंज नहीं, अभी भी ओवर ब्राइट जा रहा है, बिकॉज यू आर शूटिंग ऑन 1.4, तुम 1.4 पे शूट करो, 3 स्टॉप और तुम्हारी लाइट जो है अभी भी ओवर हो रही है, थ्रू द मीटरिंग मोड और थ्रू द सॉरी स्पॉट मीटरिंग तुम्हें अभी भी दिखा रहा है 2 स्टॉप ओवर है। 4000 से ज्यादा ब्रश नहीं हो सकता ना, 4000 से ज्यादा जाएगा, नॉर्मल डीएसएलआर की बात कर रहा हूँ। नो सर। 4000 नहीं ज्यादा जाए तो क्या करना होगा, We have to use ND filter. एनडी फिल्टर, चलिए एनडी यूज करते हैं। एनडी का फैक्टर पता है, 93. 9 आप ओपेसिटी बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, सो आई विल डिस्कस ओवर हियर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिल्टर, जो एनडी फैक्टर आता है ना, वो आता है 2x, 4x, 8x, 16x एंड ऑल द वे अप टू 8192, ठीक है।
ये कुछ नहीं है जो हमने इससे पहले एक्सपोजर पढ़ा है ना, एक्सपोजर कंपनसेशन पढ़ा, जस्ट लाइक दैट, ये वही है। 2x मीन्स व्हाट, खुद एक्सपोजर से कैलकुलेट कर लो ना, समझ जाओगे। 2x मीन्स वन स्टॉप, वन स्टॉप। अगेन फिर 4 मतलब क्या हो गया, 2 स्टॉप। 8 मीन्स 3, 16 मीन्स 4, है ना। ये ऐसे ही चलता है ना। और तुम ऐसे बात को इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो क्या हो रहा है कि तुम्हें अपर्चर में तुम्हें बता रहा हूं कि सपोज करो कि तुम ये यूज करो, अगर तुमने 2x यूज किया तो यो 4 बिकम 5.6, राइट। 4 बिकम 5.6, सही हुआ ना अगर तुमने 2x यूज किया तो। Yes, sir. Yeah, yes, sir. तुमने 4x यूज किया तो 4 बिकम 5.6 एंड 8, राइट। 5.8, yeah. यही हो रहा है। अगर अब इसी चीज को तुम कहो कि मैंने इसको इंटेंसिटी में तुमसे किसी ने पूछ लिया, इसको कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी तुम कहो, कि अगर तुमको इंटेंसिटी में किसी ने पूछ लिया, ये तो अपर्चर से हम कर रहे हैं डिनोट, राइट, कि 2x means the one stop, 4x means 2 stop. So it means if you are using the 4x, it means तुम क्या करो, कितना लाइट काट रहे हो तुम। Suppose you are using the 1000 watt, it's become 250. 250. In terms of a stop, only 2 stop. In terms of intensity, 25%. In terms of Yes, sir. intensity कितना हो गया, Sir, 25%. 25% ना। कम हो रहा है ना, ऐसे ही कम हो रहा है ना लाइट। अगर वहां से परसेंटेज में तुम्हें दिखाना हो तो वहां से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट नॉर्मली हम इसे 2x जो फैक्टर कहते हैं, फैक्टर में लिखा होता है 2x फैक्टर, तो 1 स्टॉप फैक्टर, 2 स्टॉप फैक्टर, 3 स्टॉप फैक्टर, 4 स्टॉप फैक्टर, ऐसे ही कैलकुलेट होता है। आई डिडंट नीड गो अप टू लाइक दैट। तो तुम्हारे पास दो भी फिल्टर है, वन इज द 4x, अनदर इज द 6x। इट मींस यू आर यूजिंग 10x, उसके ऊपर दूसरा लगा दो, 10x हो गया तुम्हारा। सो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर ऐसे ही जाएगा, चाहे तो स्टॉप से कर लो या अदर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कर लो। 2x मींस 50% लाइट कम हो गई। एक्सपोजर कंपनसेशन में हम यही तो करते हैं ना, जब एक्सपोजर कंपनसेट करते हो तो यही करते हैं। तो यहाँ पर भी फिल्टर फैक्टर को ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज तुम्हें दिखा रहा है इन स्पॉट मीटिंग यू आर 2 स्टॉप ओवर, यू विल यूज 4x फैक्टर वाला जो तुम्हारा एंटी फिल्टर है, यू विल यूज दोज थिंग्स। एक सिचुएशन तो चलिए ये हो गया आपका, दूसरा सिचुएशन अपर्चर, तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है सर? जो ये 0.3, 0.6, 0.9 होता है वो क्या होता है? वो वही है उसका, ये ऑप्टिकल डेंसिटी में 0.3 कहते हैं उसे। ऑप्टिकल डेंसिटी कितना लाइट कम कर रहा है परसेंटेज में, उसको दिखाते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। 2x is a 0.3, right? या 2x 0.3। उसी को क्या किया, उसी फिल्टर को तुम वीडियो कैमरा में देखोगे, इज द 369, इज सब हाँ 369। वहां पर क्या हुआ कि ये नंबर्स नहीं दिया उसने, 248 नहीं दिया, 369 ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग दे दिया है। बट वही बात वही है, इज द स्टॉप, 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, लाइक दैट, है ना। इन लाइट टर्म्स से 50%, 25%, 12%, ऐसे समझ लो। 50% लाइट काटी, 25% लाइट कटा, 12.5% कटा। एक्सपोजर में भी तो यही करते हो ना, जैसे एक्सपोजर में होता है सेम, सेम हाफिंग द वही अमाउंट है। है, डबलिंग द अमाउंट है ना। हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। यहाँ एक्सपोजर में ही कर, हाफ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, यहाँ हाफ हाफ होते जा रहा है। 1 स्टॉप में आधा हुआ, 1 स्टॉप में से पहले वाले का 4 टाइम हो गया। हाँ मतलब अगर उल्टा जाए तो मतलब ऐसा कोई। हाँ बस वही है, क्योंकि ये तो सिर्फ रिडक्ट कर रहा है ना, हाँ यहाँ तो सिर्फ इंटेंसिटी कम हो रही है, तो नॉर्मल ऐसे ही समझो। जी हाँ, तीसरा सिचुएशन में कह रहा हूँ, दो सिचुएशन बड़े इजीली तुम्हें मिल जाएंगे। कौन से, एक तो तुमने डिस्कस कर लिया वो वाला, दूसरा तुमने डिस्कस कर लिया अपर्चर वाला। तीसरा सर अगर लैंडस्केप का डाल सकते हैं, ग्रेजुएटेड एंटी फिल्टर में यूज करूं पर not the graduate, software not the, I'm talking about the ND filters, अच्छा I'm talking about the ND filters। ND filters तो कर दिया हमने दोनों में। एक और सिचुएशन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। If you want to shoot a cloud, cloud का मूवमेंट देखा है, राइट? क्लाउड में मूवमेंट होते हैं। If you're shooting the cloud on the slower shutter speed, you feel which kind of the cloud will be there। क्लाउड को अगर तुम स्लो शटर पे शूट करो तो एक इंटरेस्टिंग सा बनता है वो क्लाउड का पैटर्न जो है वो। If you're shooting on slower shutter speed, that cloud, right? हो जाएगा मूवमेंट। होता है ना, वो एक फील आता है, बिकॉज क्लाउड का एक मूवमेंट है। बट इफ यू आर शूटिंग ऑन दैट थिंग, द क्लाउड, अभी बात तो शटर स्पीड की है, बट चेंज द सिचुएशंस। वहां वाटरफॉल था, यहाँ पर क्लाउड है, राइट, मूवमेंट है। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, अगेन यू हैव टू यूज एनडी फिल्टर्स। टेक्सचर भी मिल जाएंगे, तुम्हारी क्या होगी, इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। आई यू गॉट द अनदर सिचुएशंस, बिकॉज तुम पोर्ट्रेट लेके कर चुके हो, पोर्ट्रेट वाला डिस्कस कर चुके हो,
waterfall डिस्कस कर चुके थे. फिर ask for the third things, this take the example from the sky कि वहां कुछ movement है, वहां तुम यूज कर सकते. क्लाउड वाला एक बार फिर से बोलेंगे. क्लाउड में जब मूवमेंट होता है, हैव यू सीन दोस मूवमेंट ना, क्लाउड का मूवमेंट जो है, राइट, दिखता है ना क्लाउड थोड़ा सा मूव कर रहा है, यू फील दैट. अगर उस मूवमेंट को, उस चीज को तुम कैप्चर करो ऑन स्लोअर शटर स्पीड, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना. सपोज इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी भी है ना, तो क्लाउड बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है इफ यू आर शूटिंग ऑन द स्लोअर शटर स्पीड. बट जब स्लोअर शटर स्पीड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, स्काई ऑलरेडी बर्न है, ओवर एक्सपोज ऐसे ही दिख रहा है वो, तो क्या करोगे, शटर स्पीड से कितना, शटर स्पीड तुम्हारा ऑलरेडी स्लो है, अपर्चर से कितना मैनिपुलेट कर पाओगे. सो यू नीड अ एनडी फिल्टर्स. मैं सिर्फ एनडी फिल्टर्स के लिए सिचुएशंस बता रहा हूँ, एक और सिचुएशंस हो सकता है वेयर यू कैन यूज अ एनडी फिल्टर्स. तो 3 सिचुएशंस आपके हो गए. आई थिंक यही क्वेश्चन था, कुछ 3 सिचुएशंस थे शायद, या आपको आई थिंक 3 थे ना. Yes, sir. Okay. So I think the questions मैंने दिए हैं. अच्छा, इसमें 1-2 क्वेश्चंस हैं जो बिकॉज इट्स 8:30 तो नहीं हो पाएगा, बट मैं पीपीटी भेज दूंगा स्कैन. और ये मैं पीपीटी भेज देता हूँ अभी आप लोग ग्रुप में ही. ये हो गया था गोल्डन आवर वाला. नो सर. नो सर. ठीक है. Okay, anyone wants to ask anything, just ask me. No, it's nearby 8:30. Sir, I have a question. Yeah, ask me. Sir, when you explain about that one, luminance and chrominance, so 4, Yeah. 4, 4. So the first value is 4 is basically for luminance. Yeah, first 4 is basically luminance. First 4 is basically luminance. Give me 1 minute, मैं तुम्हें उसका वो दिखा देता हूँ. Just right. मैं दिखाई देता हूँ, सब देख भी लेंगे तो. Just hold. Wait a minute. ये पीपीटी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है. या नौ सही 4:4:4 रेशियो देख लो. इसमें क्या हो रहा है, सब में इंफॉर्मेशन है. सर थर्ड वन क्या है, एक लुमिनेंस हो गया, एक क्रोमिनेंस हो गया. उसी क्रोमा के सैंपलिंग का है कि अपने बगल वाले को वही इंफॉर्मेशन दे रहा है. अगर सामने वाले का इंफॉर्मेशन, सपोज करो पहला वाला फर्स्ट 4 इज फॉर द, क्या हुआ, Luminance. फर्स्ट 4 इज द लुमिनेंस. अब जो 3 है, तीनों कलर्स है ना, रेड ग्रीन ब्लू, CBCR जो ये आपके कलर होते वही है ना, ये जिसमें कि हम कहते हैं CBCR जो बन रहा है हमारा, यहाँ पर जो कलर के इंफॉर्मेशन है पिक्सल्स में, राइट. ये होता क्या है, जब ये यहाँ तो आपको पूरा का 4:4:4 दिख रहा है ना, नॉसी ओवर हियर. यहाँ 4:2:2 में क्या हो रहा है, एक के पास इंफॉर्मेशन है, प्रोमिनेंस और लुमिनेंस सबका. Sir, this picture is or this is the sensor size. या द पिक्सल समझ लो ना, पिक्सल समझ लो, पिक्सल में इंफॉर्मेशन जा रहा है, एवरी पिक्सल्स हैव दैट इंफॉर्मेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हर एक 2 पिक्सल सेम वैल्यू शेयर कर रहा है. यहाँ पर जो ना हर एक 2 पिक्सल्स एक ही की वैल्यू शेयर कर रहा है. इट मींस आधा ये ले रहा है, आधा दे रहा है. यहाँ पर, यहाँ 4 स्टार्टिंग वाले 4 में कंफ्यूज मत हो जाओ. 4 इज द नंबर्स फॉर द लुमिनेंस ओनली, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लुमिनेंस वैल्यू विल बी रिमेन सेम. यहाँ देखो ऊपर के 4 पिक्सल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये 4 पिक्सल्स हैं, ठीक है, सिर्फ ये पिक्सल्स हैं, सेंसर्स पे मत जाओ, पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स में इंफॉर्मेशन गया. अब क्या हो रहा है, 2 पिक्सल्स जो है ना अपना डेटा बांट रहा है.
अपना डेटा क्या कर रहा है, दोनों आपस में ले रहा है, डेटा एक ही मिल रहा है, तो डेटा जब 2 पिक्सल्स में डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा रेशियो, वो रेशियो क्या हो 2:2 होगा ना। तो इस हिसाब से 2:0 मतलब 2 तीसरे को दे ही नहीं रहा है, तीसरे में 2:0 वैल्यू में नहीं है। 2:0 में देयर इज ओनली वैल्यू ऑफ luminance, there is no chrominance at all। नीचे वाले सैंपल्स में सर हाँ जी, 420 वहां में, जो 420 जैसे ही होगा ना, लाइक नीचे वाले सैंपल्स में नहीं होगी हाँ शायद। ये भी होते हैं। हाँ ये कहाँ गए तुम्हारे 10 ना, नहीं ये नहीं 4:1 है ये। 411 DSCDB। कौन सा, जैसे 4:2:2 है ना तुम्हारा, इसमें क्या हो रहा है, ये अपने वाले को देगा। अगर 4:2:0 होगा ना, तो वो बगल वाले को इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लुमिनेंस का इंफॉर्मेशन होगा, क्रोमिनेंस का नहीं होगा, तो वहां वो तो कलर के ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा होंगे। या सर, वो तो कलर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है 420 में, या बिल्कुल नहीं, तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना। नहीं ब्लैक एंड व्हाइट कैसे, अब एक चीज होता है ना, जब सब सैंपलिंग में इंफॉर्मेशन जा रहा है, इतने सारे पिक्सल्स के इंफॉर्मेशन है, तो तुम्हें बीच के पिक्सल्स में अगर प्रोमिनेंस का इंफॉर्मेशन नहीं गया, तुम्हें इतना नोटिसेबल थोड़ी होगा। इतने मिलियन ऑफ पिक्सल्स है ना, 1 मिलियन ऑफ पिक्सल्स हैं, इसमें अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी गया तो कैसे होगा। वो एक ओवरऑल डेटा क्या कहते हैं, सब सैंपलिंग का मेथड है ये, आपके सॉरी पिक्सल्स को इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगा, है ना। तो वो डेटा उसे अपना वाला दे ही नहीं रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, डेटा डिवाइड कर रहा है। 4:2:0 में हुआ कि उस वाले पिक्सल को दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन, है ना, वहां पर सिर्फ लुमिनेंस की वैल्यू गई हुई है, प्रोमिनेंस की वैल्यू नहीं गई हुई है। तो वहां ब्राइटनेस तो है ना, कम से कम कलर नहीं है, ब्राइटनेस तो है ना, मोनोक्रोमिक इमेज तो है आपका, आपका जो सेंसर है वो मोनोक्रोमिक है ना, तो वहां बट सर कलर नहीं है। ये जो ऊपर जो कलर्स होता है, जो कॉमनेंस वैल्यूज होती हैं, वो हाँ बाकी पिक्सल्स के साथ शेयर हो जाती है ना, हाँ जी, मतलब, है ना। तो शेयर नहीं करेगा वो, तो उसी में इंफॉर्मेशन रहेगा, फिर आपका सैंपलिंग कैसे हुआ अगर नहीं वो जैसे कि जैसे अभी ये 8 पिक्सल्स का रे होता है ना, तो ईच पिक्सल हाँ कंटेन, हर पिक्सल का कॉमनेंस वैल्यू आता है, ठीक है। बिल्कुल अगर वो नहीं बिल्कुल, अगर वो नहीं आता है, तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू इनकॉर्डर, मतलब ये रेशियो के अकॉर्डिंग वो शेयर करता जाता है। वो जैसे क्या होगा ना, तुम्हारा देखो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना, बट जब प्रोसेस होता है, तुम्हारा जो फिल्टर एरे है वो क्या करता है, कलर फिल्टर एरे, मैंने एक सैंपलिंग दिखाई थी आपको, कलर फिल्टर एरे में मैंने ये दिखाया था, मोजाइक जो फिल्टर्स था, तीनों पिक्सल्स को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे, राइट, रेड का रेड को, या ग्रीन का ग्रीन को, ब्लू का ब्लू को। यस। बाद में क्या हो रहा था, फिर डिमोजाइकिंग का प्रोसेस चल रहा था ना। डिमोजाइकिंग में क्या होता था कि एवरेज एक पिक्सल्स का इंफॉर्मेशन पकड़ता है सेंटर से, वहां के जब प्रोसेस करते हैं तो सबको इंफॉर्मेशन देते हुए, सबका इंफॉर्मेशन लेते हुए डेटा को प्रोसेस करता है, ओवरले करता है, राइट, ओवरले यस। करता है ना। मैंने एक उसमें दिखाया था आप लोगों को, शायद याद, या पीपीटी है आप लोगों के पास, डायनामिक रेंज वाली सर। नहीं डायनामिक रेंज वाली नहीं, नहीं सेंसर सर, वाली ये एक पीपीटी बेयर होगी, पैटर्न वाला। बेयर पैटर्न वाला मैंने दिखाया था, ओवरले एक दूसरे के ऊपर में आके नहीं हाँ हुआ सर। था, एक दूसरे के साइड वाले पिक्सल्स में साइड वाले, ताकि सारा इंफॉर्मेशन गैदर्ड हो जाए। तो बिकॉज जब तीनों रेड ग्रीन ब्लू तीनों चैनल्स आ गए हैं, तो तीनों के प्रोमिनेंस भी तो सबको मिल गया ना। ये तो सब सैंपलिंग का प्रोसेस है, बट जब बेयर पैटर्न अपना डिमोजाइकिंग करेगा, वो तो देगा ना पिक्सल को इन्फॉर्मेशन। डिमोजाइकिंग का काम ही है ना ओके। कि हर एक पिक्सल को इन्फॉर्मेशन दे दो। और वो ये तो डिमोजाइकिंग से पहले का प्रोसेस है ना ये। जब तुम्हारा वो क्या कहते हैं, बेयर पैटर्न डिमोजाइक करेगा, वो क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू उठाता है, हर एक पिक्सल को इन्फॉर्मेशन दे देता है, ये उससे पहले का वैल्यू है ना। जब डिमोजाइकिंग होगा वो पिक्सल इंफॉर्मेशन चला जाता है, बिकॉज वो ओवरले करता है तीनों ही इंफॉर्मेशन को। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। सर जैसे कि ये तो हम सिंगल सेंसर की बात करें, अगर 3 वे सेंसर जो होते हैं, जिसमें रेड का सेंसर अलग है, ग्रीन का अलग है, ब्लू का अलग है, रेड की इंफॉर्मेशन अलग, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग ले रहा है वो, तो उस सेंसर में तीनों सेंसर अपने अलग होते हैं उनके, मतलब क्या होता है वो रेड नहीं नहीं, सेंसर अलग नहीं होते यार, बस लाइट अलग जाते हैं उसमें। इसमें जैसे आपकी वैल्यू वो, ऐसे तीनों में लाइट, तीनों के चैनल्स अलग होते हैं, सेंसर एक ही होता है, तीनों के चैनल्स अलग अलग होते हैं। सो 3 वे थ्री सेंसर सी में। सी हाँ 3 सेंसर 3 बट इट टेक्स टाइम यार, अगर मैं उसको डिस्कस करूं, कितना हो गया, 8:36 हो गया। मैं काम नेक्स्ट क्लास करता में हूँ, करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं सर। I'll share the